Assalamu alaikum to every participant and all the viewers who are watching us live on our Facebook channel, and they can watch this class recording on our YouTube channel named as Jahan AI Teachers Institute. I welcome to all of you in today's session. Myself, Mariam Zulfikar, training buddy, working as Vice Principal at Jahan School Online Academy and facilitator at Jahan AI Teachers Institute Teacher Training Bootcamp for 2 months. Today is 3rd July 2025 and the day is Thursday. The time is 8 minutes past 9 p.m. UTC plus 5 according to Pakistan Standard Time. I hope and I believe all the participants are enjoying good health. So we'll start our class with the meditation so that we'll wipe up all the clutters and the thoughts that we are having right now, and then we can focusfully join the class for next 2 hours with each other. So, Nasimullah Bhai, please play the meditation video. Let's practice the meditation and please sit straight with your back straight and close your eyes and just focus on the voice of the Just breathe. Breathe in and out. Recognize all of the thoughts swirling around in your mind. The worries, stresses, fears, anxieties. And then start with breathing. And step outside of yourself for just a moment. Push the mental reset button. See yourself here in this space. Recognize your body, your arms, your legs, your head. See yourself here and know that you can just be. You recognize all these thoughts happening in your mind. They have become like papers thrown all around a room. But you can allow them to be picked up neatly and orderly and file them away. Clear the clutter so you can access any certain thought or idea, but only when you need them. Just listen to these suggestions and count with me. Starting with 5, a sharp and focused mind. 4, freeing yourself of needless worry. 3, presence of mind, right here and now. 2, resolution, order, and clarity. 1, a free and open mind. And now, seeing yourself, feeling your breath, recognizing it, returning here to this very moment. No future or past, only here and now. Again, listen and count with me. 5, sharp, focused. 4, free, no worry. 3, present, here and now. 2,
order, clarity. One, mind free and open. Just pause, breathe, and reset anytime, again and again. You will find strength and presence. You will be confident. You will be your best self. You can. It's up to you. So, press reset. Okay, participants, thank you so very much for practicing this meditation video. I hope all the participants are feeling more relaxed और अब आप पहले से ज़्यादा focused feel करेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपनी क्लास को conduct कर सकते हैं. As I communicated yesterday, by tomorrow we'll have a 2 hours full complete class. So we'll start our class with our curriculum book. So I'm sharing the book in the WhatsApp group. Please let me know how many participants are added in the WhatsApp group and how many are not. Raise the hands. Those participants are not in the group so that I can add them. And then I'll share the curriculum book with all of you. Miss Lubna is added. Okay. Ishal, are you in our WhatsApp group or not? Yes, I am. Not. Okay. Ahmed is not in the WhatsApp group. Ahmed, did you send me a message? Okay. Let me find you. Can you send me a message right now? One more time, please. Thank you. Ishal added. Okay. मोहम्मद साहब प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दीजिए. Okay. In the meantime, let's talk about our today's task. सबसे पहले जो आज हमने काम करना है वो हमने अपने WhatsApp की जो थोड़ी सी सेटिंग है उसको अलाइन करना है. जैसे कि मैंने शेयर किया था आप सबके साथ कि हमारा जो WhatsApp हम यूज करेंगे वो हम पब्लिकली यूज करेंगे. देयर शुड बी नो प्राइवेसी फॉर द नेक्स्ट 2 months. अब इन 2 महीनों के लिए आपका कोई भी सोशल मीडिया जो अकाउंट है वो प्राइवेट नहीं होगा. उसको प्रॉपरली आपने पब्लिकली यूज करना है. जो भी इससे पहले आप यूज कर रहे थे डिफरेंट सोशल मीडिया स्ट्रीम्स को, अब आपको उनको अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, उन सबको आप अगर इनअप्रोप्रिएट हैं तो मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आप उनको जो है वो अनफ्रेंड कर दें. उसकी रीजन ये है कि जब हम बहुत सारे फेसबुक ने एक रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दिया कि आप सिर्फ 5,000 नंबर ऑफ पीपल्स को अपने फेसबुक में ऐड कर सकते हैं. तो अगर हम उन लोगों को अपने फेसबुक में ऐड कर लेते हैं जो कि हमारी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे और वो खामखा हमारी फेसबुक में ऐड है, जिनका कंटेंट भी हमें अप्रोप्रिएट नहीं लगता और हमसे कभी बात भी नहीं होती और हमारा सिर्फ एक जो सीट है या एक पर्सन जो हम बहुत अच्छा कनेक्शन ऐड कर सकते हैं, हम उसको जो है खामखा में किसी दूसरे को ऐड करके बैठे हुए हैं जिसका कोई हमें जो वैल्यू कंट्रीब्यूटेड है वो हमारी लाइफ में नहीं है. तो हम उनको अनफ्रेंड कर दें और किसी ऐसे इंसान को चांस दें जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, कुछ उसकी कंट्रीब्यूशन होंगी और हम भी उस कनेक्शन के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज अपने फेसबुक को, लिंक्डइन को, इंस्टाग्राम को, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको अनफ्रेंड कर दीजिए. और जो कनेक्शन और जो नेटवर्क आपको अब इस 2 महीने में मिलेगा, आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे.
and those people will add lots of things in your life and your learning journey, और आप बहुत कुछ उनसे सीखेंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम आज हम यही कर लेते हैं कि हम सबसे पहले अपनी जो फेसबुक अकाउंट है उसमें जितने भी लोग हमारे जो कि फ्रेंड सर्कल में नहीं आए और हमें उनके जो कंटेंट है वो अच्छा भी नहीं लगता है कि जो वो शेयर करते हैं, हम उनको आज पहली फुर्सत में अनफ्रेंड कर दें। ठीक, एक तो ये काम कर दें। दूसरा, आप सब अभी जो हमारा ग्रुप है, मैं उसमें हमारे पास अहमद मुस्वा के भी मेक न्यू होगा। नो अहमद मुस्वा, दिस इज नॉट अलाउड। हम जो पहले अकाउंट यूज कर रहे हैं हमने उसी को ही यूज करना है। द रीजन इज दैट कि देखिए, अगर हम अपनी ही 4 कॉपियां खुद डेवलप कर देंगे तो फिर वो फेक आईडी वाला क्या करेगा? अगर आपने खुद ही अपनी 4 आईडियां बना दी तो फेक आईडी वाले को भी तो चांस दो, ताकि वो भी आपकी कोई आईडी क्रिएट करे, आपको वायरल करे, आपका आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर्स है, आपका कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिश हो सके। तो इसलिए आप अपनी एक ही आईडी को यूज करेंगे और वही आईडी जो आप पर्सनल यूज कर रहे थे उसी आईडी को यूज करेंगे। इसलिए क्योंकि हम उन नंबर ऑफ पर्सन को जो कि हमारी फैमिली और फ्रेंड्स और कजन सर्कल हैं उनको बता सके कि यस, आई स्टार्टेड अ न्यू जर्नी and this journey actually added this kind of the value in my life. So if you want to be the part of this, you can ask me, I can guide you, you can ask this system that they can guide you. तो आप उन सब लोगों के लिए एक पहला वो मोटिवेशनल पर्सन और इंडिविजुअल होंगे अपनी फैमिली का, जो ये सब चीजें उनके साथ भी शेयर करेगा और उनको बताएगा कि मेरी लाइफ में किस तरह से वैल्यूज ऐड हुई हैं और आप लोग भी ये सब कर सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर कोई ये कर सकता है। हमारे साथ बहुत सारी हाउस वाइफ जुड़ी, हमारे साथ बहुत सीनियर एज के लोग जो हैं वो अभी तक मौजूद है, जिनमें हमारे पास अभी एक एग्जांपल भी है, और इसके अलावा भी बहुत सारे सीनियर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सो दे आर डूइंग वंडर्स। तो इंशाल्लाह आप तो अभी बहुत ही यंग है और आप में तो अभी बहुत ही पोटेंशियल है, तो आप तो बहुत कुछ करने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम उसी अकाउंट्स को, आप अपना उसी इंस्टा को यूज करेंगे जो कि आप पहले यूज कर रहे थे, उसी फेसबुक को यूज करेंगे, उसी लिंक्डइन को यूज करेंगे, और आप यूट्यूब अकाउंट भी बनाएंगे ताकि कल को अहमद भाई भी हमारे एक अच्छे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हों और एक बहुत हेल्दी कंटेंट जो है वो अपनी यूट्यूब पे अपलोड करते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम अपने सोशल मीडिया स्ट्रीम्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर अब हमने अपनी करिकुलम बुक को स्टार्ट करना है, जिसके लिए ये जितनी सोशल मीडिया 4 प्लेटफॉर्म मैंने अभी आपको काउंट करवाए हैं, जिसमें फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये चारों प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं। और ये चारों प्लेटफॉर्म आप समझते हैं कि जिस तरह आप स्कूल में जाते हैं ना, तो आप एक नोटबुक चेक कराते हैं कि ये मेरा होमवर्क है, ये मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो टीचर आपके होमवर्क से आपको मिस्टेक पॉइंट आउट करके बताता है, अच्छा अच्छा ये गलती है, इसको ठीक कर लो, इसमें ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको इस तरह से और बेहतर कर सकते थे, और हम इस राइटिंग स्टाइल को लिखेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अब कुछ स्कूल्स भी अपने एक स्टैंडर्ड राइटिंग प्रैक्टिस में भी आ गए कि हमारे स्कूल का ये राइटिंग प्रैक्टिस है, आप इसी को फॉलो करना है। इवन के टीचर्स को भी सीखना पड़ता है। तो अब हमने ये सिस्टम खत्म कर दिया। इस स्कूल में ना कोई पेन है, ना कोई बुक है, और ना ही किसी चीज पे आपने लिखना है। आपने जो कुछ भी पब्लिक पोस्ट करना है, दैट्स योर डिजिटल नोटपैड, और वो डिजिटल नोटबुक्स हैं आपकी ऑल सोशल मीडिया स्ट्रीम्स। वो आपकी लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है। ठीक है, तो हम आज जो है अब वो अपने एक तो व्हाट्सएप को अलाइन करेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आ रही मैं किससे क्या बात कर रही हूँ और मैंने किसको क्या मैसेज करना होता है। मुझे कल 3-4 लोगों को कुछ चीजें गाइड करनी थी, और मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या करना था। मैंने व्हाट्सएप में बहुत कोशिश की समझने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो कौन कौन है। तो सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप को अलाइन कर लेते हैं, और उसके बाद हम फेसबुक को आज अलाइन कर लेते हैं, और कल हम अपने लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों अकाउंट्स को एक साथ ऑप्टिमल करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम जो है नेक्स्ट क्लास में अपनी कोर्स बुक को स्टार्ट कर सके। ठीक है, सो माजरत के साथ वो मेरे बहन भाई जिनको ये चीज थोड़ी स्ट्रेंज लगेगी कि भाई मैं क्यों अपना फेसबुक अकाउंट ये करूं या इस तरह से मैं पब्लिक करूं या उसी अकाउंट पे पोस्ट करूं, तो उसकी रीजन ये है कि सबसे पहले हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है, और फिर अपनी सराउंडिंग में सबको अपने आप को ये एक जो नया वर्जन है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, सो दैट कि हम अपनी हर चीज को खुद ऑन करें और फिर हम उसको रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए आप अपने जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं उन्हीं को यूज करेंगे। ठीक है, और उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, क्योंकि जिस सिस्टम में हम जाते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तो इसी तरह से आप भी अपने सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए अपने उस स्ट्रीम को चेंज करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी आप में से किसी ने ये सवाल नहीं किया, शायद बहुत सारे लोग जानते हैं या नहीं जानते।
एक हमारे स्कूल का कॉन्सेप्ट है वाला और वाली का, जो कि आप सबके लिए भी होगा। और इस वाला और वाली का पर्पस क्या होता है, क्यों ऐड करते हैं अपने नाम के साथ, और ये क्या करेगा, किस तरह से आपकी लाइफ में इससे कुछ वैल्यूज ऐड होंगी। इसमें ये है कि आपने एक प्रॉब्लम फिक्स करना है फॉर होल द वर्ल्ड, नॉट फॉर जस्ट पाकिस्तान। आपने पूरी दुनिया के लिए उस एक प्रॉब्लम को फिक्स करना है, ठीक है। ये नहीं होगा कि अच्छा 2 महीने में ही वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। हाँ, इट टेक्स टाइम। आप उस पे काम करते रहेंगे, उन लोगों के साथ कनेक्ट करते रहेंगे जो ऑलरेडी इस सर्टन स्पेसिफिक नीश पे काम कर चुके हैं, ठीक है। अब वो आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह से अपने सिनेरियो में रहते हुए, आप दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए, आपका अपना एक सर्कल बन जाएगा, आपकी अपनी एक कम्युनिटी बन जाएगी। जस्ट आई चूज माई सेल्फ ट्रेनिंग वाली। अब मैंने क्यों चूज किया था, उसकी कोई रीजन है, और आप सबकी भी अपनी अपनी रीजन होंगी कि आप ये सब क्यों अपने साथ वाला या वाली ऐड कर रहे हैं। नजीमुल्लाह भाई ने ऐड किया अपने लिए एजुकेशन वाला, ठीक है। मूसा इलियास भाई अभी तक कोई वाला नहीं सेलेक्ट कर सके, क्योंकि अब वो अंडर प्रोसेस है, वो कब वाला वाली ऐड करेंगे अपने साथ। मिस राहत ने ऐड किया है काउंसलिंग वाली, क्योंकि वो उनका ये मानना है कि मुझे पेरेंट्स को इस न्यू सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाना है, ताकि वो ये नई चीज को समझ सके, और जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम है उसके क्या ड्रॉबैक्स है, या किस तरह से हम कन्वेंशनल सिस्टम के साथ साथ इस न्यू सिस्टम को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी रीजंस हैं। इसी तरह से हम सब एक वाला वाली सेलेक्ट करते हैं और उस पे हम काम करते हैं। कुछ को तो माशाल्लाह से सर रेहान खुद जो है वो गाइड कर देते हैं कि भाई आप ये वाला लगा लो, ये नहीं अच्छा लग रहा, ये ज्यादा सही है, आप इसमें ज्यादा अच्छे हो, तो वो आपको गाइड कर देते हैं। और कुछ में आपकी अपनी जो होती है वो थिंकिंग होती है कि अच्छा आपने ये वाला जो वाला या वाली सेलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरी बात हमारी एक जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है ना कि ये मेडिसिन खानी है और यही चीज खानी है, इसी तरह से रेहान ने एक लिस्ट अप्रूव की हुई है, और आपने उसी लिस्ट में से अपने लिए वाला या वाली जो है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसकी रीजन ये है कि वो फिर सर रेहान आपको उन्हीं लोगों के कम्युनिटीज में ऐड करते हैं, उन्हीं लोगों से कनेक्ट कराना शुरू कर देते हैं जो वाला या वाली आपने अपने नाम के साथ खुद ऐड किया होता है। सो मैं वो लिस्ट अभी जो है वो आप सबके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अब फिर हम अपनी छोटी छोटी चेंजेस की तरफ जाते हैं। अभी मैं तो 1 मिनट दीजिएगा, बस ये चैट पढ़ लूँ ताकि मुझे पता चल जाए कितने बहन भाई मेरे ऐड नहीं है। उन सबको पहले मैं ऐड कर लूँ, फिर हम ग्रुप में बात कर लेते हैं। लुबना इज एडेड, अहमद मुस्तफा इज नॉट एडेड, इरम मुश्ताक एडेड, इशार जहरा एडेड, नसीमुल्लाह भाई नॉट एडेड, अहमद मुस्तफा, अच्छा ठीक है। आसिफ खान, क्या ये आज का क्लास है? जी ये आज की क्लास है, बिल्कुल। सर मेक माई यूट्यूब अकाउंट ऑन एनी टॉपिक, और अच्छा ठीक है। यूट्यूब अकाउंट की 1 मिनट हम बात करते हैं। मैं सुलभना अभी हम आज जो है वो व्हाट्सएप और फेसबुक की बात कर रहे हैं। आज हम इन दो स्पेसिफिकली सोशल मीडिया पे बात करेंगे। कल इंशाल्लाह हम यूट्यूब के बारे में गाइड करेंगे और उस पर बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस इरम समरीन प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है, क्लास में आपको 2 घंटे के लिए अपना कैमरा ऑन करके ही बैठना है। और मोहम्मद शफीक साहब आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि आपको भी जान सके, और अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं इरम बात कर रही हूँ। जी प्लीज मिस इरम मैं आप अपने कैमरा ऑन करें ताकि हम आपको बेहतर तरीके से सुन सके। नहीं, आज मैं दरअसल डेमो क्लास ले रही थी, तो इसलिए मैं आज कैमरा ऑन नहीं करूंगी अपना। ओके अगर मैं जब ओके ज्वाइन कर लूंगी तो इंशाल्लाह फिर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके जी, अहमद भाई आपने मुझे मैसेज किया है? अहमद भाई, यार मिस जवेरिया आप ग्रुप में हैं? अहमद भाई मुझे आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। ओके, अच्छा ये हे का मैसेज है, शायद ये अहमद की। ओके ठीक है,
एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं आपको ऐड कर लूँ और फिर मैं बुक्स शेयर कर दूँ और साथ में अपनी चीजें जो हमने करनी है वो कर दूँ। कॉन्टेक्ट क्रिएट अहमद मुस्तफा। Okay. Okay. Ahmed bhai, you are added. Any other participants who not added? Naseemullah bhai and Mosim. आसिफ भाई, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं? जी जी, जिस आसिफ ग्रुप भाई। में मैडम, जिस ग्रुप में लिंक शेयर की जाती है वो ग्रुप में, उसमें मैं जी ऐड जी, हूँ। एंड चलो जबरदस्त हो गया। जी। आई होप कि अब कोई भी पार्टिसिपेंट ऐसा नहीं है जो कि हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बुक शेयर कर दूं ताकि आपके पास आपकी करिकुलम बुक आ जाए। ओके गाइस, आई शेयर्ड योर बुक इन द व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी जो बुक है वो आपको शेयर कर दी है। और अब मैं आपको वो लिस्ट शेयर कर दूं जो कि मैंने आपसे कहा है अभी। Okay. अच्छा, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप अभी बहुत जल्दी में आप डिसाइड करें और अपने लिए भी वाला या वाली सेलेक्ट करें। यू कैन टेक अ डे, लाइक आप कल तक अपने लिए ये वाला या वाली जो है वो सेलेक्ट कर लें, और उसकी कोई रीजन जो कि आपको समझ में आती है बहुत सॉलिड सी, या आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है आप उसको जो है अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए चीजें करना आसान हो जाए। डॉक्टर अनम मैम, आरवी टू ग्रुप। ओके डॉक्टर अनम। Yes, I'm on WhatsApp. Can you please share the WhatsApp link and make it in the group? Okay. Assalamu alaikum, Dr. Anam. Can you please introduce yourself? Dr. Anam, can you unmute yourself? Okay. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Assalamualaikum. I'm Dr. Hanam. I'm a serving gynecologist in District Sawabi, where we do health practices regarding health immunization, child care, and MNCH, mother child health nutrition के ऊपर काम करते हैं, and we provide them the safest basic EMOC services, emergency services for delivery in the region, District Sawabi. Thank you so very much, Dr. Anam, for joining us, and I'm honored to have you in my today's class. Thank you so very much for joining. It's your observation class for 2 days. You can join us as an observer, and then later on, definitely I'll add you the group. Okay? Thank you so very much for joining. Be with us. ओके पारिस्पत, तो सबसे पहले अभी जैसे मैं बात कर रही थी, हम आज जो है वो व्हाट्सएप को अलाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी ही स्क्रीन शेयर करके आप सबके लिए जो है इस चीज को मेक श्योर कर देती हूँ कि हम अपने व्हाट्सएप पे क्या चेंजिंग करने वाले हैं, ताकि आप सबके लिए इजी हो जाए अपने व्हाट्सएप को चेंज करना। आई होप माई स्क्रीन इज शेयर्ड फॉर एवरीवन। आप सबको अभी मेरा व्हाट्सएप जो है वो नजर आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपनी सेटिंग में आएंगे, जो कि शायद प्रोबेबली फोन से ज्यादा अप्रोप्रिएट है। लैपटॉप से करना थोड़ा शायद हेक्टिक होगा या फिर प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे प्लीज आप सब अपना अपना नेम सेट कर लें कि जो हमने अपने लिए कुछ निक नेम सेलेक्ट किए होते हैं, अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी या whatever, हम कुछ इमोजीज ऐड कर देते हैं या कुछ भी ऐड कर देते हैं, तो उसको प्लीज हटा के अपना प्यारा सा नाम जो आप के पेरेंट्स ने आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया,
आप प्लीज उसको सेट कर ले, ताकि हम सब एक दूसरे को प्रॉपरली जान सके कि हाँ ये मोहसिन भाई हैं, ये आसिफ भाई हैं, ये मिस गुलशान है या मिस फाइजा है। और इसको आपने सेट फॉर पब्लिक करना है, ठीक है, फॉर फॉर एवरीवन, ताकि हर कोई आपके नाम से आपको जान सके। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल साहब भी उस ग्रुप में मौजूद हैं, और डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह सर रेहान भी उस ग्रुप में मौजूद होंगे। तो फिर वो जब भी आपको कनेक्ट करेंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि वो आपको आपके नेम से जान सके, क्योंकि सारे कॉन्टेक्ट्स को सेव करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। बट डेफिनेटली आई डू, बट जो हमारे सीनियर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, वो कितने कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं? आपके फोन बुक की भी एक स्पेसिफिक मेमोरी है ना, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं तो बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। और उसको सेट फॉर एवरीवन कर दें। जैसे आपको यहाँ भी मेरा नाम लिखा नजर आ रहा है, मरियम जुल्फिकार ट्रेनिंग वाली, तो आप अभी अपना वाला या वाली नहीं सेलेक्ट करें, दैट्स ओके। आप यहाँ पे अपना नेम सेट कर लीजिए जो आपका अपना नाम है, ठीक है, फुल नेम साथ। देन अपना अबाउट सेक्शन कैसे लिखना है ये हम बात कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में, कि हम इसको किस तरह से फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले आज आप अपना जो है वो व्हाट्सएप का जो नेम है उसको अलाइन करें। इसके साथ आपने क्या करना है, अपनी बहुत ही प्यारी खूबसूरत हसीन हैंडसम तस्वीर आपने एक एक जो है व्हाट्सएप करनी है मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में, सो दैट जिस तरह का प्रोफाइल पिक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसी तरह का कुछ मिलता जुलता आप सबके लिए डिजाइन किया जाएगा, जो कि आपने अपने व्हाट्सएप पे अलाइन करना होगा फॉर द रेस्ट ऑफ द 2 मंथ्स। फ्रॉम जुलाई टिल अगस्त आपने अपने व्हाट्सएप पे अपना प्रोफाइल पिक्चर जो है उसको इनेबल करना है। किसी कार्टून की, किसी सेक्रेट प्लेस की, किसी भी जगह की आपको पिक्चर जो है वो अलाउड नहीं है। आपने अपना पिक्चर इनेबल करना है, जैसे यहाँ पे मेरा पिक्चर नजर आया, एंड इट विल बी पब्लिक सेट फॉर एवरीवन। कोई भी प्राइवेसी कॉन्टेक्स्ट पे या प्राइवेटी कुछ नहीं होगा। आपने जो कुछ भी ऐड करना है पब्लिकली ऐड करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे व्हाट्सएप पे जो कुछ सेटिंग्स हैं ये बहुत जरूरी हैं, और ये इनको कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपका नेम अप्रोप्रिएट होगा, फिर इंशाल्लाह कल तक आपको आपका प्रोफाइल पिक्चर मिल जाएगा, फिर हम कल प्रोफाइल पिक्चर भी सेट कर देंगे साथ ही। और इसके साथ अभी हम अपना अबाउट सेक्शन जो है उसको भी फिक्स कर लेते हैं कि हमने किस तरह से ये सब कुछ जो मैंने लिखा हुआ है आप लोग अपने लिए क्या कुछ लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम सब ने अपना अपना व्हाट्सएप जो है उसको अलाइन करना है, ठीक। तो ये व्हाट्सएप की अलाइनमेंट है जो कि आप सब अभी कर दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि क्लास में ही हम ये टास्क जो अपने परफॉर्म कर रहे हैं क्लास के बाद करने में शायद थोड़ा टाइम भी लगे, और हमें फिर स्पेसिफिकली अपना जो रूटीन टाइम है उसमें से थोड़ा टाइम स्पेयर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, मिसेरम कोई सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है कि जो पिक्चर हमने आपको शेयर करनी है वो ये जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है इसके अंदर शेयर करनी है कि आपके पर्सनल जो व्हाट्सएप का अकाउंट है आपके नंबर पे शेयर करनी है? अगर आप व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करेंगे तो बहुत अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली बातें भी तो हम सबने पब्लिकली ही यूज करनी है, और इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब एक पिक्चर है, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, एंड वी रियली रिस्पेक्ट ईच अदर्स प्राइवेसी एंड थिंग दैट, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करें। अच्छा, एक चीज पिक्चर के बारे में प्लीज स्पेसिफिकली मैं शेयर कर दूं, पिक्चर जो आप ही शेयर करेंगे इट शुड बी इन पासपोर्ट साइज, उसका पासपोर्ट साइज होना चाहिए, जो कि हम अपने नॉर्मली जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए यूज करते हैं। और करंट पिक्चर शेयर कीजिएगा। ऐसा नहीं हो मेरी तरह कि आप कोई 4 साल पुरानी पिक्चर जो है वो मेरे साथ शेयर कर दे, तो फिर करंट मरियम को देखना और पहले 4 साल वाली मरियम को देखना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए आप जो रीसेंट पिक्चर्स हैं उनको शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास ऐसी कोई पिक्चर नहीं है जो कि पासपोर्ट साइज में अभी रिसेंटली बनवाई हो किसी ने, तो आप ये कर सकते हैं, घर में कोई भी आप बच्चा बहुत एक्सपर्ट हो आपकी फैमिली में, या आप खुद बहुत एक्सपर्ट हो पिक्चर्स क्लिक करने में, तो अपने कैमरे के साथ आप बहुत अच्छी एक पिक्चर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। और बैक कैमरे से क्लिक कीजिएगा, प्लीज सेल्फी अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे मुझे सेल्फी नहीं चाहिए किसी की भी। हम जरूर देखेंगे आपकी सेल्फियां, लेकिन अभी जो है वो एक बहुत प्रोफेशनल पिक्चर जो है हमने बनाना है, क्योंकि वही एक पिक्चर अभी आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरे देखेंगे सब पे एक ही पिक्चर लगा है। उसका रीजन ये है कि हम हर जगह पे एक जैसे यूनिफॉर्मिटी के साथ नजर आएंगे, तो हमारी जो दूसरे लोगों के साथ कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी रहती है, ट्रस्ट आपका डेवलप होता है, और लोग आपको जो है वो बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। लेट सपोज कि अगर कोई मुझे सिर्फ फेसबुक पे फॉलो करता है, तो वो मेरे फेसबुक से मेरे लिंक्डइन और यूट्यूब और उन पे भी फॉलो करना चाहे तो उनको एक ही पिक्चर मिलेगा जो कि तमाम सोशल मीडिया स्ट्रीम पे अपलोडेड है। तो जब भी आपने पिक्चर चेंज करना होगा डेफिनेटली आई विल शेयर द टेम्पलेट विद यू लेटर ऑन, और फिर इंशाल्लाह आप
खुद भी अपने पिक्चर्स डिजाइन करेंगे कि आप अच्छा, अभी मेरा जो डिजाइन किया हुआ पिक्चर शाहरुख को पसंद नहीं आया, तो शाहरुख को कुछ हफ्ते के बाद अपना पिक्चर अपडेट करना है, तो शाहरुख खुद अपना जो है वो पिक्चर अपडेट कर सकती है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम आप इसको चेंज कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप पिक्चर्स मतलब एक महीने बाद चेंज कर लें तो वो अच्छा रहता है। सालों साल एक ही पिक्चर को देख देख के हम खुद भी बोर हो जाते हैं, और सामने वाले भी बोर हो जाते थे कि क्या इतनी देर से मरीम को देख रहे हैं, एक ही पिक्चर लगी हुई है, कोई नया पोस्ट भी दिखा दो, कोई नई चीज भी ऐड कर दो अपनी। तो फिर हमें थोड़ा सा जो है इनोवेशन और अपनी जो प्रोफाइल है उसको अलाइव रखने के लिए थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि मसाला और तड़का लगाते रहना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले हाँ भाई ये रोज नया चीज कुछ ना कुछ ऐड करती रहती है। वैसे तो हम अपनी बहुत सारी चीजें कंटेंट जो अपलोड करेंगे वो तो करेंगे डे टू डे, लेकिन ये चीजें भी बहुत जरूरी है। मोहम्मद शफीक भाई, मुझे सिर्फ जो है वो स्टेयरिंग नजर आ रहा है, आप नहीं नजर आ रहे, प्लीज कैमरे पे आ रहे हैं ताकि हम आपको देख सके। ओके जी। तो ये वाली छोटी सी चीज हम आज व्हाट्सएप की कर लें कि अपने नेम अलाइन कर लें। आज हम बात कर लेते हैं फेसबुक की। तो अच्छा, आपने अभी क्या करना है, सबसे पहले आप सब अपना अपना फेसबुक का लिंक अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दें, सो दैट विल शेयर द करेक्शंस, ताकि हम एक दूसरे के साथ अपनी जो करेक्शन रिक्वेस्ट है वो शेयर कर सके और हम सब एक दूसरे के कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो आप सब अपना अपना व्हाट्सएप प्रोफाइल जो है अपने सॉरी फेसबुक प्रोफाइल व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दें। ओके, आई एम ऑल्सो डूइंग इट। और फिर हम इसकी ग्रेजुअली स्लोली आज कुछ चेंजिंग्स करते हैं जो कि आप सबके लिए भी बहुत फ्रूटफुल रहेंगी, और अब हम ये टाइम टू टाइम ये चीजें करते रहेंगे। ओके, ओके गाइस, आई शेयर्ड माय फेसबुक लिंक। मैंने अपना फेसबुक लिंक व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दिया। अब वन बाय वन आप सब भी शेयर कर दीजिए, तो फिर हम एक दूसरे को ऐड कर सके अपनी फेसबुक में। आई होप आप सब मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कवर फोटो की। अब हम यहाँ पे कवर फोटो बहुत डिफरेंट कवर फोटोज हमने ऐड किए होते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर में, फेसबुक की या लिंक्डइन की या यूट्यूब। खैर अब हम पे से बहुत से लोग तो यूज ही नहीं करते, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम हम बहुत फ्रीक्वेंट यूज करते हैं। तो उसमें हमने जो है डिफरेंट कलर के कवर फोटोज ऐड किए होते हैं। अभी 2 महीने के लिए आपने अपने कवर फोटोज हटा देने हैं, और कवर फोटो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो कवर फोटो आप सब अपनी प्रोफाइल पे अलाइन कर देंगे। जैसे कि आप मेरा देख रहे हैं, बिकॉज आई एम बिलोंग टू रिहाज स्कूल ऑनलाइन अकेडमी, तो मेरा जो है वो रिहाज स्कूल ऑनलाइन अकेडमी का है। यू गाइस आर द पावर ऑफ रिहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट, तो आपका जो कवर फोटो होगा वो रिहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट का कवर फोटो होगा। ठीक है, और देन प्रोफाइल पिक्चर जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो मेरा व्हाट्सएप पे है, अब आप देख सकते हैं कि फेसबुक पे भी वही है। ठीक है, और उसके बाद अब ये जो साइड पे आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स आप में से माशाल्लाह से ऑलरेडी आई बिलीव कि उनका जो है ये साइड पे सीवी जो है वो डेफिनेटली होगा। और अगर नहीं है तो हम ग्रेजुअली स्टोरी अब इन चीजों को ऐड ऑन करना शुरू करते हैं अपनी प्रोफाइल में, और किस तरह से करेंगे हम वो भी सारी चीजें शेयर करते हैं। अच्छा जी, माजरत के साथ कुछ ही दिन पहले फेसबुक ने मेरा इंट्रोडक्शन रिमूव कर दिया, ये कह के कि भाई हम नहीं चाहते कि आपकी बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन जो शेयर की जाए, जबकि मुझे कोई मसला नहीं था, फेसबुक को ऑटोमेटिकली मसला हो गया अभी 4 दिन पहले, हालांकि 1 साल पहले तक वो कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको। और अभी जो मेरा वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है और पोस्ट है वो रिमूव हो चुका है। सो आई एम वर्किंग के मैं इंशाल्लाह अब 2-4 दिन में दोबारा बना के फिर इसको अपलोड कर दूँ, तो अभी वीकेंड आएगा तो इंशाल्लाह आई डू इट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि हर पर्सन को फॉलो करना होता है। हर किसी की प्रोफाइल पे आपको उनका इंट्रोडक्टरी वीडियो और इंट्रोडक्शन जो है वो जरूर मिल जाएगा। उसके रीजन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो मिस फायदा के साथ कनेक्ट करना है, तो मुझे मिस फायदा से जाके पूछना नहीं पड़ेगा कि मिस फायदा आप क्या करती हैं, आपकी क्या हॉबीज हैं, आपकी क्या लाइक्स हैं, आपकी क्या फेवरेट पर्सनैलिटीज रही, आप अब करंट क्या काम कर रही हैं, पास्ट में आपकी क्या जॉब सिनेरियो जेडीज रहे और आपने किस किस तरह निश में काम किया हुआ है। तो वो फिर हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। अभी जैसे हमें फर्स्ट टाइम हम एक सेशन करते हैं इंट्रोडक्टरी, तो हम एक दूसरे से जानते हैं ना कि मूसा भाई किस चीज में एक्सपर्ट हैं, क्या कुछ करते हैं और किस तरह से कर रहे हैं। मोहसिन भाई आर यू नॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप? जी जी, मैं बिल्कुल हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, अरे वाह, मोहसिन भाई ने अपने लिए सेलेक्ट भी कर लिया एआई वाला, जबरदस्त मोहसिन भाई। थैंक यू।
ओके जी। ओके पार्टिसिपेंट्स, आप प्लीज एक दूसरे को फेसबुक पे ऐड कर लीजिए, और डेफिनेटली आई शेयर द फ्रेंड रिक्वेस्ट एज वेल। मैं भी आप सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी। ठीक है, तो हम सब एक दूसरे के साथ इस तरह से फेसबुक पे कनेक्ट हो जाएंगे। व्हाट्सएप पे तो हम कनेक्ट हो चुके हैं, तो फिर हम फेसबुक पे भी कनेक्ट हो जाएंगे। अभी वॉलंटरली कोई पर्सन जिसने अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो रिकॉर्ड किया हो, दो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हमें थोड़ा लेट ज्वाइन किया, 2 दिन लेट हैं वो, उनके लिए हम दोबारा से वो जो है वो टास्क शेयर कर देते हैं आज, ताकि वो अपना कंप्लीट कर लें। बट वो पार्टिसिपेंट जो जिन्होंने डे 1 से हमें ज्वाइन किया 30 जून से, उनमें से किसी पार्टिसिपेंट अगर कोई वॉलंटियरली अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहे तो प्लीज रेज योर हैंड, अपना हैंड रेज कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कौन वॉलंटियरली ये काम करेगा। ओके मिस इरम, मिस इरम प्लीज शेयर योर स्क्रीन, अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपने जो अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लैपटॉप में मौजूद है या सेल फोन में? हाँ जी मैम, मेरा वीडियो जो है वो मोबाइल में है, लैपटॉप में नहीं है। और ये स्क्रीन कैसे शेयर करनी, जरा मुझे गाइड कर दीजिए, मैं करती हूँ। अच्छा ठीक हो गया। पार्टिसिपेंट्स में एक रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने एक वीडियो शेयर किया था व्हाट्सएप के ग्रुप में, अगर किसी को मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं आज दोबारा शेयर कर दूंगी, जिसमें मैंने जूम के सब फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आज मैं दोबारा उस शेयर कर देती हूँ उस वीडियो को, ताकि आप सबके लिए भी उसको समझना आसान हो जाए। ठीक है, मिस इरम, अभी हमारे पास एक ग्रीन कलर का बटन है लैपटॉप पे, देखिएगा लास्ट पे, जिसपे अपसाइड एरो बना हुआ है, उस पे क्लिक कीजिए। अपना माइक अनम्यूट रखिए, ताकि मुझे हम कम्युनिकेट कर सके कि आप ये काम कर रहे हो या नहीं। वाह, आपकी स्क्रीन तो शेयर होगी। आप तो ऐसे परेशान हो रहे थे। ओके जी, जबरदस्त, आपका प्रोफाइल पिक्चर भी आ गया हम बनाने के लिए। ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए, एक फेसबुक पे आ जाए। फेसबुक पे टैब है ना ऊपर खुली हुई आपकी, ऊपर टैब पे क्लिक करें। अच्छा, जूम की एक बार होती है टास्क बार, वो जैसे हम स्क्रीन शेयर करते हैं, या तो वो टॉप पे होती है या बॉटम पे होती है। अगर वो टॉप पे है तो उसको डबल क्लिक करके होल्ड करके आप नीचे मूव कर दें, वो मूवेबल है। ठीक है, वो पूरी स्क्रीन पे घूम सकती है जैसे जैसे आप घुमाना चाहें। ओके ठीक हो गया। सबसे पहले आप ये करें मिस, कि अपने सेल फोन में आइए, अपना सेल फोन पकड़िएगा व्हाट्सएप के लिए। मैं सिर्फ अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, एंड रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स प्लीज फॉलो द सेम थिंग। आपके सेलफोन में अगर आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो आप अपने लैपटॉप में उसको किस तरह से लेके आएंगे, अब हमने ये सीखना है। आप क्या करेंगे, अपने सेलफोन से वो वीडियो जो है उसको खुद को शेयर कर दें। और वो खुद को कैसे हम शेयर करते हैं, हमारे व्हाट्सएप के अंदर एक बड़ा अच्छा फीचर हमें मिल गया है यू के नाम से। ठीक है, वहां पे हमारा अपना ही नंबर मौजूद होता है, और हम खुद को ही जो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लिए, आपको जिसे कहते हैं ना कि नोटबुक बनानी है, कि अच्छा ये मेरे नोट्स हैं जो कि मेरे साथ हमेशा मौजूद रहने चाहिए, और वो व्हाट्सएप में आपके पास हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो आप यू में अपने लिए वो वीडियो खुद को शेयर कर लें। जैसे ही आप खुद को शेयर करेंगे, तो वो आपके पास ही आपका वीडियो रहेगा, और आपके व्हाट्सएप में आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, वो अनम्यूटेड है आपके पास। अच्छा, मैं सीरम का फ्लैट, मैं सीरम, आप अपने यस सेल फोन पे आइएगा प्लीज, अपना सेल फोन जी हाथ पकड़े, और अपने जी। आप को वो वीडियो अपनी गैलरी से खुद को ही शेयर कर दे, यू में जाकर। कैसे शेयर करनी है? आप यू लिखा होता है, सर्च कीजिएगा, कॉन्टेक्स्ट में आए अपने। अ, एक मिनट। ये जो ऐड का बटन व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप में देखिएगा, राइट बॉटम में हमारे पास एक ग्रीन कलर का प्लस साइन होता है। हाँ जी, उस पर मैंने क्लिक कर दिया। जी, उस पर क्लिक कर दिया ना। अब आप हम्म। उसमें आएंगे, सबसे टॉप पे आपको अपना ही हाँ जी, नंबर शो हो रहा ठीक है, है। उस पर क्लिक कीजिएगा। हाँ जी। अब क्लिक करने के बाद अब वहां पे एक अटैचमेंट फाइल का साइन होगा, क्लिप बना हाँ होता जी, है, गैलरी, क्लिक हाँ कर, जी। आप गैलरी में आ गई। अब अपनी वीडियो अपने आप को शेयर कर दे। ठीक है, कर रही हो हूँ। गई, जबरदस्त हो गया, माइक ऑन है, दोबारा बंद कर। ठीक हो गया। शेयर हो रही है। अब अपने लैपटॉप पे आ जाए। ठीक है, अब आप ठीक है। सेलफोन छोड़ दें। ठीक है। अब आप अपने व्हाट्सएप में आए,
जी आते हैं, कह रहे हैं। नीर कवर फोटो। मिस गुलशान, आप ये वीडियो अपने व्हाट्सएप में खुद को शेयर कीजिए। डाउनलोड कवर फोटो। तो ये जब मैंने खुद को शेयर किया ना, वो मेरे व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप वेब है ना, उसमें शो नहीं हो रहा। एक मिनट दे दें, जब आपकी आपके व्हाट्सएप से शेयर हो जाएगी ना प्रॉपरली, तो आपको ठीक है। शो भी हो जाए। ठीक है। अच्छा, ठीक। अभी आप अपने व्हाट्सएप पे आइए। आप इसको छोड़ दें, तब तक ये होने दें। अभी देखिए, मैंने एक नई पिक्चर शेयर आ की गए, है। ठीक है, वीडियो आ गई। जबरदस्त। अब आप इस पे आ जाए, इसको छोड़ दें। अब आप जो है बैच 11 पे क्लिक कीजिएगा। जी। ये पार्टिसिपेंट्स, आई शेयर द कवर फोटो फॉर द फेसबुक। मैंने फेसबुक के लिए कवर फोटो सबको शेयर किया है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। इस कवर फोटो पे आप क्लिक कीजिएगा, मिस सिरम। ठीक है, एक मिनट में करती हूँ। ये तो सर रेहान वाली तस्वीर, ठीक है। जी, रेहान की तस्वीर में दिस इज जी। योर कवर फॉर द फेसबुक। अब ये यहाँ पे इन्वर्टेड एरो है राइट कॉर्नर में, ये देखिएगा। इसके ऊपर क्लिक करें। डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। जी, ये डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। अभी आपने इसको, ये जो ऊपर डाउनलोड का ऊपर आ रहा है ना व्हाट्सएप इमेज, उस पर क्लिक करें, ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन को देख सकें ये सेव कहाँ हुआ है, क्योंकि हमें फिर बाद में इसको अपलोड करना है। ओके करें। हम्म। ओके करेक्ट। अब ये तो फोटोज नहीं बता रहा कि आपके कहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। फोटोज में हो गया है। अच्छा जी, आपको याद है ये फोटोज में हो गया। ठीक है। हाँ जी। अब आप इसको क्लोज कर दें। इस वाली विंडो को हमें ये नहीं चाहिए, इसको बंद कर दें। अब अपनी फेसबुक पे आइए। ओके, स्क्रॉल अप। अभी एडिट कवर फोटो पे क्लिक कीजिए। अपलोड कवर फोटो। नहीं मिस, अपलोड कवर फोटो। ठीक है। ओके। अब अपनी फोटोज में आपने कहा कि वो डाउनलोड हो गया है, तो फोटोज में क्लिक कर ले। आई थिंक वैसे नॉर्मली वो डाउनलोड फोल्डर में आती हैं, पर ठीक है, मैं अगर चेक आप चेक कर लेती हूँ। जी आ गए। इस पे क्लिक कीजिएगा, ओपन। दैट्स ग्रेट। अब सेव चेंजेस कर दे। ओके पार्टिसिपेंट्स, इस तरह से हम सब अपने अपने फेसबुक पे ये वाले कवर फोटो लाइन अप कर लेंगे, ताकि हम सबकी कवर फोटो का जो कवर पेज है वो सेम हो जाए। ठीक है, फेसबुक का। अब इसके बाद में आपने अभी दो सेटिंग्स करनी है। अभी आप अपनी फेसबुक को अब पब्लिक करेंगे। ठीक है, अब वो पब्लिक कैसे करते हैं? प्रोफेशनल मोड तो आपने ऑन किया हुआ है। आई होप सो कि आपका अकाउंट शायद पब्लिक भी होगा। हाँ, जी आपका पब्लिक है। अकाउंट ऑलरेडी पब्लिक है। आपको पब्लिक करने की जरूरत नहीं, आपके फॉरवर्ड और फॉलोइंग बटन ऑन है। ठीक हो गया। जी। अच्छा जी, अब आप ये बताइए कि आपने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था, हम्म। उसका रिटन इंट्रोडक्शन आपके पास कहीं है? आपने लिखा है रिटन इंट्रोडक्शन अपना? हाँ लिखा तो था। लिखा तो था। कहाँ है, ये याद है आपको? वो मैंने वीडियो बनाने के बाद ना, वो मेरे बेटे ने फाड़ दिया, वो बास्केट में फेंक दिया। गॉट इट। आप अभी भी कॉपी और पेजेस पे हैं भाई, ना करें। दरअसल हमारे पास वैसे ही कम है। डिजिटलाइजेशन पे आ जाए। अब आप अपने लैपटॉप को यूज करें, लैपटॉप में लिखा करें। क्यों ठीक अपने है। पेजेस को जाया कर रहे हैं? ठीक है, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, मैं आई वाज जस्ट ऑन लाइटर नोट। मैं डोंट टेक इट सीरियस। अच्छा, मैं कैन यू स्टॉप शेयर योर स्क्रीन? थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ तक आज आज का आपका टास्क डन है। बाकी पार्टिसिपेंट प्लीज अपना कवर फोटो लाइन कर लीजिए। मैंने आपको शेयर कर दिया। ये पिक्चर स्टॉप की मैंने शेयरिंग रिक्वेस्ट कैसे की है। होगा? आप जो आपके इस तरह से एक रेड कलर की पट्टी आ रही है, उसके राइट साइड पे लिखा हुआ हाँ स्टॉप ठीक है। शेयर, लेफ्ट साइड ठीक है। उस पे। ठीक है, थैंक यू, थैंक दैट्स इट। ओके जी। ओके पार्टिसिपेंट्स, मैं आपके साथ एक छोटी सी एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। जैसे कि कल हमारे बहुत अच्छे द चैटर बॉक्स मूसा भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि आपको बता दिया जाए कि आप चैट जीपीटी इंस्टॉल कर लें और उसको यूज करना शुरू कर दें। तो आज हम वही काम करेंगे। सबसे पहले मैं चैट जीपीटी का एक ओवरव्यू दूंगी आप सबको लैपटॉप पे, और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप चैट जीपीटी को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ए स्टोर या प्ले स्टोर से। जो एंड्रॉयड यूजर है मेरी तरह, वो अपने प्ले स्टोर से करेंगे, और जो एप्पल यूजर है वो ए स्टोर से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं एज अ ऐप। ठीक है, आज हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, और उसका पर्पस क्या है वो भी मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ कि आज हमने उसको सबसे पहले ही क्यों करना है।
minute. Okay. I hope my screen is shared for everyone. Show me thumbs up. It is or not. Okay. So हम सबसे पहले डिपेंड करता है, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हैं। मैं प्रेफरेबली माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा यूज करती हूँ, तो इसलिए जो है वो मैंने अभी भी माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर ही ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ सर्च बार में आप लिखेंगे चैट जीपीटी, और जो बहुत फ्रीक्वेंट यूजर जब आप भी बन जाएंगे मेरी तरह, रोज चैट जीपीटी से बातें करेंगे, तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ क्लिक करेंगे तो आपकी सर्च में आपको चैट जीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, जब आप चैट जीपीटी के लिंक पे आएंगे ना, तो एक चीज प्लीज याद रखिएगा, कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ये चैट जीपीटी ओपन एआई तो लिखा होगा और नीचे आपको चैट जीपीटी लिखा हुआ भी नजर आएगा, और यहाँ पे ऊपर लिखा होगा स्पॉन्सर्ड। प्लीज स्पॉन्सर्ड लिंक्स को क्लिक नहीं कीजिएगा। अब वो स्पॉन्सर्ड लिंक का मतलब ये होता है कि इसके साथ कोई एक ऐसा लिंक एसोसिएटेड है जो कि इमोरल भी हो सकता है, अनएथिकल भी हो सकता है, और समहाउ कुछ ऐसी वीडियोस उसके साथ अटैच होती हैं जो जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो भाई साहब जिन्होंने उस लिंक के साथ अपना एक लिंक अटैच किया हुआ है ओरिजिनल लिंक के साथ, वो उस लिंक के थ्रू अर्न कर सकते हैं, उस लिंक के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन उनको मिल सकती है। तो इसलिए स्पॉन्सर्ड लिंक को कभी भी क्लिक नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको एक्चुअल चैट जीपीटी का लिंक जो है वो मिल जाएगा chatgpt.com के नाम से। ठीक है, जैसे अभी मैंने स्क्रॉल डाउन किया और मुझे यहाँ पे ये वाला लिंक मिल गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले वो जिन्होंने कभी चैट जीपीटी को यूज नहीं किया था लैपटॉप पे, और अगर जो लोग यूज कर रहे हैं दैट्स रियली वंडरफुल, वो फिर बेहतर तरीके से जानते होंगे इन सब चीजों के बारे में, मैं दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ सबके लिए। यहाँ पे आपके पास राइट कॉर्नर में साइन अप या लॉग इन का ऑप्शन आएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने चैट जीपीटी को साइन अप पे क्लिक करते हुए साइन अप कर देना है, और ये साइन अप किससे होगा, आपके जीमेल अकाउंट के साथ। तो कोशिश कीजिए जितने भी आप अकाउंट्स यूज कर रहे हैं, अगर आप उनमें अपना ईमेल आपका नहीं है, वैसे तो नॉर्मली हम अपने सारे सोशल मीडिया स्ट्रीम के लिंक्स चेंज कर लेंगे, वो तो आपके नेम पे दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका जीमेल अकाउंट आपके अपने नेम से नहीं है तो उसको एक नया जीमेल क्रिएट कर ले अपने नेम के साथ, और अपनी चीजों को थोड़ा प्रोफेशनलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जिसमें आप सबसे पहले अपना ईमेल जो है इसके साथ लिंक कर लेंगे। वो आपको जैसे साइन अप करेंगे तो फिर आपको एक विंडो शो होगी जिसमें वो पूछेगा कनेक्ट विद गूगल और एड योर ईमेल और कनेक्ट विद एप्पल स्टोर। तो वो जिस तरह से आपके जो ईमेल आपके पास है, अगर आप एप्पल यूजर हैं तो एप्पल की दे दें, अगर आप एंड्रॉइड या जीमेल यूजर है तो फिर जीमेल गूगल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे फिर पूछेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस ईमेल, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू, और फिर वो सारा प्रोसीजर कर देगा। अभी वैसे मैं एक प्रैक्टिस क्लास में भी करवाऊंगी ताकि वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने पहली बार चैट जीपीटी को यूज करना है उनके ये चीजें थोड़ी अंडरस्टैंडेबल हो जाए। वो करने के बाद हम यहाँ इस तरह का एक इंटरफेस पे आ जाएंगे। अच्छा, वो हमें करना क्यों है, मतलब हमें ईमेल के साथ कनेक्ट करने की क्या जरूरत है, हम विदाउट ईमेल भी तो चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको अपनी ईमेल के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे बहुत सारी चैट्स नजर आ रही होंगी, यहाँ से नीचे ये चैट्स देखिए कितनी सारी चैट्स नजर आ रही हैं आपको। ठीक है, ये सारी चैट्स एक साल नहीं सॉरी 16 महीनों का ये डाटा है। ठीक है, मैंने 2024 मार्च में इसको लॉग इन किया था, और तब से लेके अब तक चैट जीपीटी ने हर इंफॉर्मेशन, हर छोटी से छोटी बात जो मैंने इसके साथ शेयर की वो सारी स्टोर की हुई है। लेकिन इसके स्टोर करने से ना तो मेरे लैपटॉप की मेमोरी बहुत ओवरफुल हो गई है, ना ही मेरी जीमेल की मेमोरी ओवरफुल हो गई है। जितना भी डाटा स्टोर्ड है वो इसी वेबसाइट के अंदर ही स्टोर्ड है। ठीक है, या मेरी ऐप में स्टोर्ड है जो कि चैट जीपीटी की ऐप है, लेकिन मेरा कहीं दूसरी जगह पे कोई भी डाटा ओवर स्टोर्ड नहीं है। ठीक है, इसलिए जब हम इसको अपनी जीमेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए आपकी हिस्ट्री जो है उसको मेंटेन करना शुरू कर देगा। फिर जब भी आपको अपनी कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप दोबारा से उससे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि मैंने 2024 मार्च में अपना इंट्रोडक्शन वीडियो और अपनी इंट्रोडक्शन शेयर किया था। अभी 2 दिन पहले 28 जून को 2025 में शायद जो फेसबुक है उसने वो नोटिफिकेशन दिया कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर होनी चाहिए, तो इसलिए हम रिमूव कर रहे हैं, और उन्होंने रिमूव कर भी दी खुद ही। ठीक है,
अब मुझे वो दोबारा अगर पोस्ट करनी है तो मैं क्या करती, मैं यहाँ पे सर्च चैट में जाऊंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी, बस आपको ये कीवर्ड याद रखना है कि मैंने किस इंफॉर्मेशन को किस कीवर्ड के साथ जो है वो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, मैंने जैसे ही इंट्रोडक्शन लिखा, अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चैट्स नजर आ रही होंगी इंट्रोडक्शन के नाम से। तो ये जो फेसबुक बायो क्रिएशन है, ये मेरा एक्चुअल इंट्रोडक्शन है, जिसको मैंने बहुत सारी जगहों पे फिर रिपर्पस किया, बहुत कुछ इसके साथ शेयर किया, और फिर उसने मुझे मेरे लिए वो सारा बना दिया। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप सबने भी सारी प्रोसीजर को फॉलो करना है। आप सबने इसी तरह चैट जीपीटी पे आना है और आप सबने अपना पूरा इंट्रोडक्शन रिटर्न लिखना है। जैसे आप सब पढ़ सकते हैं ये मेरे बारे में, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने रिटर्न यहाँ चैट जीपीटी पे लिखी। ठीक है, जिसमें मैंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, जैसे हमारे सिबलिंग्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप वो शेयर कर देते हैं, अपनी लाइफ्स के बारे में शेयर कर देते हैं, आपकी कोई सर्टिफिकेशंस हैं, आप कहीं जॉब करते रहे हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर कर देनी है। ये मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर दी। लास्टली फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जो है वो कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन दे दो जो कि मैं फेसबुक पे लिख सकूं, या मुझे इसी इंट्रोडक्शन को दोबारा से एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन बना दो। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसी रिटन इंट्रोडक्शन को करते हुए अपने लिए डिफरेंट सोशल मीडिया स्ट्रीम के लिए उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये करना है, चाहे तो आप इस इंट्रोडक्शन को जैसी भी इंग्लिश है, मतलब मेरी अपनी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी, मैंने जो भी इंग्लिश थी मैंने उसमें लिख दिया इसको, इसलिए दोबारा मुझे इसी इंट्रोडक्शन को बहुत प्रोफेशनल मैनर में लिख के दिया और मैंने उसको कॉपी किया और अपनी फेसबुक पे अपलोड कर दिया। उसी को मैंने फिर दोबारा जो है वो चेंज किया और मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना था और वो डिफरेंट स्ट्रीम में पोस्ट करना था, तो मैंने उसको डिफरेंट तरीके से उसको फिर दोबारा से यूज कर दिया। फिर मुझे लिंक्डइन पे पोस्ट करना था और लिंक्डइन पे भी कुछ डिफरेंट जो है इसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, उसको मैंने दोबारा एक और प्रॉम्प्ट दिया, उसको लिंक्डइन के अकॉर्डिंग मैंने बनवा लिया। तो बस ये एक बार आपने कल बैठ के कोई 10 मिनट 15 मिनट लगाने हैं और अपना रिटन इंट्रोडक्शन जो है वो चैट जीपीटी के साथ शेयर कर देना है, और फिर चैट जीपीटी को हम प्रॉम्प्ट देके उसको चेंज करवाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम आपने आज ये करना है कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रिकॉर्ड करना है, और जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है उसी सारी बातों को आपने चैट जीपीटी के ऊपर, यहाँ पे ये जो आस्क एनीथिंग का यहाँ पे है, यहाँ पे हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस जिनको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वो पूरी इंफॉर्मेशन अपनी शेयर कर देंगे। ठीक है, शेयर करने के बाद लास्ट में हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, please give me this introduction in a very professional manner so that I can upload on my social media streams। तो आप जब ये एक सेंटेंस उसको दे देंगे तो आपका पूरी इंट्रोडक्शन को आपके लिए स्ट्रीम कर देगा, प्रॉपरली चैनलाइज करके आपकी जो सारी चीजें हैं, आपकी सर्टिफिकेशन कहाँ पे आनी चाहिए, आपकी प्रोफेशनल डिग्री जो लोएस्ट डिग्री है उससे स्टार्ट करना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री से स्टार्ट करना चाहिए, आपकी जो जितनी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है उसको किस तरह से प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है, क्या अप्रोप्रिएट वर्डिंग यूज करनी चाहिए, कहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी ठीक नहीं थी उसको वो ठीक कर देगा, तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके लिए कर देगा। इसको आप कह सकते हैं चैट जीपीटी अब आपका वो छोटू है जो काम आप खुद नहीं कर पा रहे थे, अब चैट जीपीटी आपके लिए कर देगा, या आपको किसी दूसरे से कहना पड़ता था अब आपको किसी से नहीं कहना, अब चैट जीपीटी से कह सकते हैं। ठीक है, अब हम चैट जीपीटी को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि चैट जीपीटी के अंदर है क्या कुछ। सबसे पहले जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कोई भी, यहाँ पे हम कोई भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हम उस तरह का इसको प्रॉम्प्ट देंगे, हमारे लिए वैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर देता है। उसके बाद ये जो प्लस का साइन है इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप कोई फोटो ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और उस फोटो को ऐड कर दे, फाइल को ऐड कर दे, जैसे पीडीएफ की फाइल बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं और हमें नहीं पढ़नी उनको ना, जैसे हमारे जो मोहसिन भाई हैं वो लॉ कर रहे हैं, तो लॉ में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, कितने केस हिस्ट्रीज याद रखनी पड़ती हैं और कितना कुछ वो उनको सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो याद करने पड़ेंगे। तो अब ये जो है हमारे मोहसिन भाई की मुश्किल आसान हो जाएगी कि वो इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स जो है वो चैट जीपीटी को दे, और जो रिक्वायर्ड उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रॉम्प्ट में लिखे और चैट जीपीटी उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा। ठीक है, उसके बाद नीचे है ऐड फ्रॉम एप्स। अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन गूगल ड्राइव में मौजूद है, आपके गूगल क्लाउड में मौजूद है, आपके माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव में मौजूद है, तो आप उसको भी वहां से एक जो है वो यहाँ पे पाथ जो है उसको फॉलो कराते हुए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और फिर उस इंफॉर्मेशन के साथ आपको जिस तरह की उसे री पर्पस करना है या आपको उसका दोबारा से कोई नई इन्फॉर्मेशन उससे लिंक करनी है तो आप प्रॉम्प्ट देंगे तो आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा। देन ये टूल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे टूल्स में आपके पास ये
चैट जीपीटी इमेजेस भी क्रिएट करता है, चैट जीपीटी एक वेब सर्च भी है, जो कि आपके साथ जितनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है वो वेब पे शेयर करता है। चैट जीपीटी बहुत अच्छी कोडिंग करता है, जिसको कोडिंग विद एआई के नाम से हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपनी एक सेपरेट, हमारा वो एक प्रोग्राम है जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत डीप सर्च भी करता है, और थिंक फॉर लॉन्गर भी आपके साथ शेयर करता है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज आप सबको बता दूं कि चैट जीपीटी को आप जितना भी यूज कर लेना, चैट जीपीटी आपके साथ हमेशा पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन शेयर करता है, रेफरेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी शेयर नहीं करता। आपको किसी साइटेशन की जरूरत है, किसी रेफरेंस की जरूरत है, जैसे कि मैं अभी दोबारा से लॉ की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वहां पे हमें बाकायदा लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन याद करने पड़ते हैं कि अंडर दिस लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन दिस केस विल बी हियर्ड लाइक दिस, ठीक है। और उसके फिर प्रॉपर वो सारी हेयरिंग होती है, फिर उसकी जो भी जजा और सजा होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो वो प्रॉपर हमें साइटेशन देनी पड़ती है। चैट जीपीटी आपको साइटेशन नहीं देगा। हाँ, अगर आपके उस जो आपने उसके साथ पूरा आर्टिकल शेयर किया है, या कोई बुक, या कोई पूरा वो ड्राफ्ट शेयर किया है, तो उसके अंदर कोई साइटेशन मौजूद है तो वो शेयर कर देगा। लेकिन खुद से अगर आप कहें कि चैट जीपीटी आपको कोई साइटेशन ला के दे, तो चैट जीपीटी कोई साइटेशन नहीं ला के देता। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि चैट जीपीटी एक ओपन एआई बेस्ड सोर्स है, ठीक है। अब ये ओपन एआई बेस्ड सोर्स क्या है, उसको हम थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे पास ये एक माइक्रो फोन का ऑप्शन है। जो लोग थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि भाई अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के 10 मिनट में टाइप करूं, मैं बोल के सारा जो है वो इसको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे ही माइक्रोफोन पे क्लिक करते हैं तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन इसको वर्बली जो है वो डिक्टेट करवा सकते हैं। और फिर ये क्या करेगा, वो आपका पूरी इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको टेक्सचर फॉर्म में यहाँ लिख के दे देगा, ठीक है। जब वो लिख के देगा तो आप दोबारा उसको प्रूफ रीड कर सकते हैं कि क्या जो बात आपने चैट जीपीटी से कही थी, क्या ये वही बात उसने सुनी है, ये समझी है। और अगर नहीं सुनी ये समझी तो आप दोबारा से अपने प्रॉम्प्ट को दोबारा उसको इंस्ट्रक्शन शेयर कर सकती हैं कि चैट जीपीटी प्लीज राइट इन दिस मैनर, आई जस्ट वांट टू गिव दिस इंफॉर्मेशन एंड नाउ प्लीज रिट्रेट दिस इंफॉर्मेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो आपके साथ दोबारा से आपकी वो पूरा प्रॉम्प्ट फिर लिख के दिखाएगा, आप उसको दोबारा प्रूफ रीड करें और फिर उसके बाद उसको ओके का साइन दे दें। यहाँ पे एक ब्लैक कलर का जो एरो है वो अपसाइड एरो आपको शो होगा, उस पर क्लिक करते हुए आप ये काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ ये वाला काम। Hey ChatGPT, please write a message for me to share an announcement for the parents. On Saturday, we have a parents-teacher meeting at 9 a.m. sharp for our foundation level students. So please join the meeting on time and don't be late. And we have to be connected for the students' progress and the betterment. Thank you so very much for joining. अब जैसे मैंने इसको ओके किया, अब वो पूरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट मुझे लिख के बताएगा कि जो कुछ मैंने उसको इन्फॉर्मेशन शेयर की थी क्या ये वही इन्फॉर्मेशन है जो कुछ उसने समझा है, या अगर वो नहीं है तो मैं दोबारा से इस प्रॉम्प्ट को चेंज करवा लूँ इसके साथ। अब अगर मैं इसको प्रूफ रीड करके कहती हूँ हाँ ये वही सारी चीजें हैं जो कुछ मैंने इसके साथ शेयर किया था, अब मैं इसको यहाँ पे एरो साइड पे क्लिक करूंगी। अब चैट जीपीटी मेरे लिए प्रॉम्प्ट लिख के देगा, मुझे एक बड़ा अच्छा सा मैसेज बना के देगा जो कि बहुत प्रोफेशनल और अप्रोप्रिएट इंग्लिश के साथ होगा। अभी तो शायद मेरी अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं था। लुक लाइक दिस। अब ये इसने विद इन अ सेकेंड मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी कि हाँ ये लो, ये मैंने मैसेज बना दिया, अब अपने पेरेंट्स को ये मैसेज फॉरवर्ड कर दो। अब क्या करना है, ये मैसेज मैंने यहाँ से किया कॉपी, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद मैं आऊंगी अपने व्हाट्सएप में। लेट्स सपोज कि मैंने ये मैसेज आप ही के ग्रुप में भेजना था। अब मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करती हूँ, ये मैंने क्लिक किया और ये सारा मैसेज यहाँ पे आ गया। थोड़ी सी चीजें हमें यहाँ पे आके करनी पड़ती हैं कि जैसे लास्ट ये लाइन जो है ये नहीं हमें शो करनी और ना ही किसी को बताना है। यहाँ पे आपको अपना नेम एडिट करना पड़ेगा कि आप कौन है, किसकी तरफ से मैसेज कर रहे हैं, आप वो नेम एडिट कर दें आप। और ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो चैट जीपीटी हाईलाइटिंग के लिए डबल स्टाइरिक्स यूज करता है। व्हाट्सएप में हाईलाइटिंग के लिए सिंगल स्टाइरिक यूज होते हैं। तो इसको एक स्टार्स को यहाँ से स्टाइरिक साइन को इरेज कर दे ताकि जो हाईलाइटनिंग है वो प्रॉपरली व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग हो, चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी चैट जीपीटी को यूज करते हुए डे टू डे इंफॉर्मेशन जो कि आपको लगता है कि हाँ ये काम जो मैंने करना था 5 मिनट 10 मिनट लगा के टाइपिंग करनी है, फिर मुझे उसको प्रूफ रीड करना है कि अच्छा इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं, सेंटेंस स्ट्रक्चर तो खराब नहीं। ये सारी चीजें मैं खुद करने की बजाय मैं एक जैसी भी इंग्लिश है जैसी भी उर्दू है उसमें प्रॉम्प्ट शेयर कर दूं चैट जीपीटी के साथ, और चैट जीपीटी मेरे लिए उस सारी इंफॉर्मेशन को बड़े अच्छे से समझते हुए
और एक बहुत प्रोफेशनल मैनर में उसको मेरे लिए प्रिपेयर कर देगा। और फिर मुझे सिर्फ 2 मिनट देने हैं और इसकी थोड़ी सी मेकअप करना है इसका, और उसके बाद फिर मैं इसको शेयर कर सकती हूँ। सो और यहाँ पे ये पेरेंट्स के साथ ये अनाउंसमेंट का था, और इस अनाउंसमेंट के ऊपर फिर एक मतलब उसने शेयर की हुई थी एक्स्ट्रा लाइन, हम उसको इरेज करेंगे एंड देन विल जस्ट शेयर द मैसेज फॉर द पेरेंट्स। ठीक। और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया ये मैसेज आपको मिल गया। बस इतना सा काम जो मैंने बैठ के इतनी देर लगा के करना था ये चैट जीपीटी ने कर दिया। सिर्फ यही नहीं, आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, जैसे आप टीचर हैं, आपको कोई लेसन प्लान बनाना है और आपको पता है कि आप शादी आ रही है फैमिली में, मैं अगले 10 दिन के लिए बिजी हूँ, मुझे बच्चों की वर्कशीट प्रिपेयर करनी है, मुझे बच्चों के लिए जो है वो क्वेश्चन बनाने हैं, मुझे कुछ बच्चों को री इंटरवीन करना है, उनकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं जा रही, तो आप चैट जीपीटी को छोटे छोटे फॉर्म देते जाएं, आपके लिए चैट जीपीटी पेपर डिजाइन कर देगा, वर्कशीट्स बना देगा, आपके टाइम टेबल बना देगा आपके लिए। आपका जो पूरा प्लान है, लेसन प्लान, अगले 10 दिन का लेसन प्लान बनाना है, उसको टॉपिक शेयर कर दे, उसको टाइम बता दे, उसको डेट बता दे, उसको स्टूडेंट्स बता दे। आपके स्टूडेंट्स मिक्स एबिलिटी हैं, आपके स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत हाई अचीवर्स हैं, उनके लिए अलग से वो आपके लिए सारी चीजें डिजाइन करके देगा। मीडियोकर एवरेज स्टूडेंट्स के लिए अलग से डिजाइन करके देगा, और वो बच्चे जो बिलो एवरेज हैं उनके लिए अलग से डिजाइन करके देगा। तो मतलब जो काम आपने बैठ के घंटों लगा के और फिर अब बहुत सारी चीजें सोचनी थी, अपना माइंड मेकअप करना था, वो आपको नहीं करना, वो चैट जीपीटी आपके लिए सब कर देगा। ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था चैट जीपीटी के बारे में। एक चीज मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ जो कि बहुत जरूरी है। जैसे ही आप कोई नई इंफॉर्मेशन शेयर करें तो प्लीज कोशिश करें कि हर बार नई चैट को यूज करें। इसलिए क्योंकि जब आप लेफ्ट साइड पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन सेव होना शुरू हो जाती है। ये इन्फॉर्मेशन जो सेव हो रही है ना, इसको फिर दोबारा से ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने पेरेंट्स टीचर मीटिंग का एक यहाँ पे नोट बनवाया। अब इसी के नीचे जो है मैं ग्रेड 9 के मैथ्स के पेपर जो है वो डिजाइन कराना शुरू कर देती हूँ। फिर मुझे याद आता नहीं नहीं, मैंने ग्रेड 5 में भी मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैं उसी के नीचे फिर ग्रेड 5 का भी मैथ्स का जो है वो अगर इंटरवेंशन थी उनको प्रिपेयर करना था वो कर लूँ, वर्कशीट थी वो कर लूँ। फिर मैं एसएसटी पढ़ा रही हूँ तो मैं एसएसटी का काम भी इसी से करा लूँ। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और हमें समटाइम याद भी नहीं रहता कि कौन सी फाइल कहाँ पे हमने सेव की हुई थी। हमें सिर्फ ये याद रहता है कि हाँ पेपर जरूर बनाए थे चैट जीपीटी ने, अब ढूंढूं कहाँ से। फिर आपको यहाँ 1 बाय 1 सारी चैट्स को सर्च करना पड़ता है, और फिर वो एक अलग से फैसल होती है कि आप ये सारी चीजें बैठ कर उनको जो है वो अलाइन करें। तो बेहतर ये होता है जैसे कि आप कोई भी काम करें, एक तो यहाँ पे जैसे इसने ऑटोमेटिकली खुद आपके लिए जो है वो एक टाइटल आप अरेंज कर देता है। ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर आप खुद इसको टाइटल देना चाहते हैं, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन मौजूद है, इस सारे को आप रीनेम कर दें। ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको ले देती हूँ पीटीएम नोटिस। अच्छा। और ये मेरा पीटीएम नोटिस के नाम से सेव हो जाएगा। ठीक। तो आप अपनी फाइल को चैट जीपीटी के अंदर रहते हुए ही अपनी छोटे छोटे फोल्डर्स, छोटी छोटी फाइल्स के रीनेम कर देंगे, और आपके लिए वो सेव कर लेगा। फिर आप जब भी आपको कोई चीज चाहिए हो सर्च चैट में आए, और उसका जो टाइटल लिखा था आपने उसी टाइटल को यहाँ पे दोबारा से सर्च करें, तो आपको वो उसी टाइटल के साथ दोबारा मिल जाएगा। जैसे मैं अभी सर्च चैट में आई, इसको मैंने एरेज किया, मैंने यहाँ लिखा पीटीएम नोटिस, वो। ठीक। इस तरह से आपके लिए आसान हो जाता है चीजों को यहाँ से ढूंढना चैट जीपीटी से, क्योंकि जब हम बहुत सारी बातें शेयर करते जाएंगे, चीजें करते जाएंगे, तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अब जब हमने एक नई चीज एक्सप्लोर करनी है तो हम नई चैट पे आएंगे, ताकि हमारी एक दूसरी फाइल डिजाइन हो जाए और फिर हम दोबारा उसको रीनेम कर सके। अच्छा, लेट्स सपोज कि आपको जो है चैट जीपीटी के साथ आपने कोई बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर की, और आप नहीं चाहते कि कोई भी आपका लैपटॉप या मोबाइल फोन जैसे घर में बच्चे यूज करते हैं तो उनके पास हो जाना चाहिए या वो पढ़ ले उस बात को, तो आप इन्हीं 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारी पढ़े या वो ले, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, और जब जब चाहे आप रीपर्पस कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि हर बार नई चैट को यूज करें, ताकि आप अपनी लाइब्रेरी को जिसे कहते हैं ना प्रॉपर अलाइंड और सॉर्टेड करके रखें। ठीक है। तो ये थी सारी बात चैट जीपीटी के बारे में। अब लास्टली मैंने एक चीज छोड़ी थी कि चैट जीपीटी जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है वो ओपन एआई से करता है। मूसा भाई आपको कुछ कहना है? जी मिस मरियम, मुझे बस एक सवाल था। मैं चैट जीपीटी की ये जो आपने एक बात बताई है ना कि यू कैन अपलोड अ पीडीएफ फाइल एंड देन इट कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, तो दैट साउंड्स वेरी यूजफुल। आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल है जो आपने प्रीवियसली किया हुआ? आई वुड जस्ट लाइक टू सी इफ लॉट्स ऑफ दैट्स। एग्जाम्पल, मैं अभी 1 मिनट में करके भी दिखा दूँ। 1 मिनट में।
अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, आई एम सो सॉरी मैं नहीं बता पाई, लेकिन अभी अब मूसा भाई ने ये बात की तो उसी की एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे अभी ये देखिएगा, मैंने ऐड फाइल्स एंड फोटोज पे क्लिक किया तो ये मेरे लैपटॉप के डाउनलोड फोल्डर या डॉक्यूमेंट फोल्डर से कनेक्ट करा देगा। जैसे ही मैं इस पे आई और यहाँ पे मेरे पास एक बुक मौजूद है, टैलेंट टैलेंट ओवररेटेड के नाम से, ठीक है। और ये पूरी बुक है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के पूरी बुक को पढूं, और आजकल वैसे ही बहुत फास्ट एंड रैपिड चेंजिंग से हो रही हैं सारी चीजें, हमारे पास टाइम बहुत कम हो गया है। तो बजाय इसके कि मैं खुद पढूं, मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे देती हूँ, प्लीज प्रिपेयर समरी ऑफ दिस बुक फॉर मी, एज यू नो आई एम मरियम जुल्फिकार ट्रेनिंग वाली। बस अब अगले 2 मिनट के बाद मैं कोई और काम करूं और ये मेरे लिए मेरी सबनी लिखनी शुरू कर देगा, और वो बिल्कुल लिखेगा भी उस तरह से जिस तरह से मरियम जुल्फिकार उससे बात करती है, और उसको पता है मरियम जुल्फिकार के जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कितना अच्छा है, उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना शुरू कर देगी। अभी जैसे अच्छा, अभी हमें कैसे पता चलता है कि चैट जीपीटी इज अंडर वर्किंग? ये जो आपको व्हाइट कलर का ये जो सर्कल नजर आ रहा है ना, जब तक ये सर्कल है इसका मतलब है चैट जीपीटी इज वर्किंग ऑन योर फाइल और सम डाटा। जैसे ही यहाँ पे वॉइस मोड का ये दोबारा से ये जो साइन है ये शो हो जाए तो इसका मतलब है इट प्रिपेयर्ड योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अब आप जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जाके देख सकते हैं, लुक लाइक दिस। यस मूसा भाई, व्हाट एल्स यू वांट? सुनिए, इसका ये मतलब पूरी किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ये क्या 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 अबॉमिनेशन है ये? बिल्कुल ऐसे ही है। आप आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं, और ये मजे की और बात, अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं घर का कोई काम कर रही हूँ किचन में और मैं इसको भी नहीं पढ़ सकती जो चैट जीपीटी ने मुझे लिख के दिया है, तो मुझे क्या करना है, इस रीड अलाउड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये चैट जीपीटी Please remember to search the user's documents if an answer to their question is not contained in the above snippets. क्या कहीं कुछ बोल रही है? कुछ आई कैंट हियर एनीथिंग। आवाज बंद हो गई। अच्छा मुसा भाई, इसके साथ एक और चीज भी है। अगर आप इसको कोई कमांड देके प्रोनाउंसिएशन पे लिखना चाहें ना, तो आप जैसे हम टीचर्स होते हैं जैसे वो काम कर सकते हैं, बड़ा जबरदस्त कर सकते हैं। आप उर्दू में इसकी प्रोनाउंसिएशन को डिजाइन कर सकते हैं। मैं एक चीज आपके साथ, जब तक मैम नहीं आती, मैं शेयर करता हूँ। ये देखिएगा, मैंने अभी बुक नहीं आई थी, फर्स्ट ईयर की बुक नहीं आई थी, मैंने चैट जीपीटी को कमांड दी अपने मुताबिक, उसने ये इतनी फॉर्मल उर्दू लिख दी ना, प्रोफेशनल, और जैसे कि बहुत बड़ा मुफक्कर हो उस तरीके से लिखता है। इसकी अल्फाज देखें, ये जरा जरा देखिएगा। ये मैंने इसको कमांड दी थी अपने मुताबिक कि कोई जो वर्ड है उसकी मुझे टाइप बता दें। इसने बताया ये एडजेक्टिव है और इसका ये मीनिंग है। इसकी उसने आईपी के मुताबिक इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ऐड कर दी और इसको उर्दू में प्रोनाउंसिएशन भी दे दी। तो ये सारा उसने ना ऑटोमेटिक किया, मैंने हाथ से कुछ भी नहीं किया, ये सारा कुछ मैंने इस तरीके से किया। इस तरीके Wow, से आप Naseem bhai. So you Chat GPT helped design this this table that you've made. Chat GPT से डिजाइन किया है आपने? मैंने उसे कमांड दी है। जब मैंने उसको कमांड दी तो उसने अकॉर्डिंगली किया, मेरे अकॉर्डिंगली। जब मैं उसे देता हूँ कमांड तो मेरे अकॉर्डिंग काम करता है। आप किसको ट्रेन करेंगे? पहले अपने मुताबिक करेंगे। और मुसा भाई, ये सियालकोट, गुजरात और वजीराबाद, इवन लाहौर, ये मेरे नोट्स चले। अभी बुक आई थी फर्स्ट, और अभी उसको कुछ में मार्केट में अवेलेबल मटेरियल नहीं था, तो मैंने बनाया
अच्छा, मेरी प्रेजेंटेशन उन्होंने पहले रखी, मैं कुछ गैजेट्स यूज करता हूँ आमतौर पे क्लास में, उन्होंने कहा आप इस पे प्रेजेंट करें, तो मैंने उनको बना के दे दिया। अच्छा, जैसे मैं मरियम बता रही थी ना, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैंने इसे अपना बताया तरीकाकार और उसको कहा कि इसके थीम्स मुझे सॉर्ट आउट कर, तो 5 थीम्स दे दें और स्टोरी दे दें। उसको मैंने कहा उर्दू में स्टोरी दे दें, इंपॉर्टेंट इवेंट्स दे दें। उसने इंपॉर्टेंट इवेंट्स थीम दे दिया, मैंने स्लाइड्स में भी इसे कन्वर्ट करवा लिया, और उधर जाके मैंने मल्टीमीडिया पे प्रेजेंट कर दिया। सब Naseem ओके। bhai, out of my curiosity, I know ChatGPT is very good for design and everything, but जैसे Miss Mariam was saying, कि it's not very good for reference. But I believe Perplexity is the other AI which is very good for reference, for research-based products, for even something like law, and for anything that is very research-based. उसके लिए Perplexity is the magic AI. यस, वो आपको अगर आर्टिकल्स आपने लेने हैं, कोई लेटेस्ट चीज वो अवेलेबल है ऑनलाइन, तो वो आपको दे सकती है, रेफरेंसेस बेस्ड वो चीजें दे सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी आप इसको अभी लोग करेंगे या अपने रिव्यूज बनाएंगे, तो वो एक मुख्तलिफ तरीका मैंने चैट जीपीटी से यूज किया था, अभी मैं इनके साथ शेयर नहीं करूंगा। वो बहुत ना इजी वे है कि मैं उसको जादू के तरीके से कर लेता हूँ। जादू के तरीके से कुछ भी ना करूँ, कुछ भी ना करूँ, मेरा उसने बना के सारा कुछ सेपरेट कर देना है। लेकिन हमें प्रैक्टिस चाहिए ना उसके लिए। और जेमिनाई जो है हम बाद में करेंगे, वो उर्दू में भी साथ करेगा, इंग्लिश में भी नहीं नहीं करेगा। बिल्कुल, I think there's multiple AI bots that can be used, and I यस, think today Ms. Mariam introduced Chat GPT, which is excellent. आप चेक करके देख लीजिए how many of you students are familiar with Chat GPT, and ताकि वो उससे तो एक familiarize हो जाए। आप लोगों के लिए जो बाएं हाथ का खेल है वो कुछ लोगों के लिए जरा एक नई चीज है, so I think you should maybe familiarize everyone with it. मिस लुबना, would you like to say something about the familiarity or the utility of chat gpt? आवाज नहीं मैडम आपकी, आपकी आ रही है। अभी भी आपकी आवाज नहीं है। कुछ चलिए वो प्रॉब्लम। मिस मरियम क्या? बिरयानी खा के आती हैं। हाँ, ये है। नहीं मुझे भाई अपॉलॉजी, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि आपको चैट जीपीटी की होते हुए चीजें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं दोबारा से उसी बुक पे हम वापस चलते हैं जहाँ से कनेक्टिंग। चैट जीपीटी ने हमारे लिए समरी भी प्रिपेयर कर दी है, हमारा कोई भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भी जनरेट कर दी। तो अब हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम इसको बैठ के पढ़ सके या इसको दोबारा से प्रूफ रीड कर सके। तो देर इज एन ऑप्शन इन चैट जीपीटी, रीड अलाउड का एक ऑप्शन है। ये जो डबल स्क्वायर है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है इसी चैट जीपीटी के इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए, तो आप कॉपी करके अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हुए अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्पीकर बटन पे, तो ये आपके लिए रीड कर देगा। Please remember to search the user's documents if an answer to their question is not contained in the above snippets. You cannot click into this file. If needed, you can use mSearch to search it for additional information. Here's a complete summary of Talent is Overrated: What Really Separates World-Class Performers from Everybody Else by Jeff Colvin. Tailored for you, Miriam Zulfikar Training Wali, with your educator and trainer perspective in mind. Summary of Talent is Overrated by Jeff Colvin. Core premise: the book challenges the age-old belief that natural talent is the main ingredient behind outstanding success. Colvin argues that world-class performance is the result of deliberate practice, not innate talent. Key concepts and insights. 1. The talent myth. Society often attributes greatness to natural gifts. Colvin तो इस तरह से अगर आप चैट, आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है और आप बहुत ही बिजी पर्सन हैं, तो आप इस तरह से अपनी चैट जीपीटी को एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। और आपके मोबाइल फोन में, आपके लैपटॉप में आपका छोटू मौजूद है और आप उससे अपने सारे काम करवा सकते हैं। ठीक है, जितनी डॉक्यूमेंटेशन आपको खुद करनी थी अब आप खुद नहीं करें, आप चैट जीपीटी से करवा लें। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक चीज कही थी, मैं दोबारा से उसी बात पे वापस आ रही हूँ। मुसा भाई, इज दैट ओके? ये कुछ और अब आपको अभी और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए?
नहीं नहीं, सेवन। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली, दैट्स अमेजिंग। इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू सी ये जो नई नई मैजिक ट्रिक्स आ रहे हैं, वो परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, को पायलट, पता नहीं कितने हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक इट शुड बी वेरी एक्साइटिंग। आई वाज जस्ट क्यूरियस, आपके स्टूडेंट्स कितने फेमिलियर हैं ऑलरेडी? सही, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे चैट जीपीटी जो है जैसे कि हमारी चीजों को रीड आउट भी करता है। एक और चीज बता दूं कि अगर आप इवन दो उर्दू में भी इसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ना, तो वो उर्दू में भी पूरी आपकी जो फाइल है उसको बहुत अच्छे से स्किम एंड स्कैन कर सकते हैं। ठीक है। तो चैट जीपीटी को ऑलमोस्ट 48 डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है। और ये डे टू डे इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें चेंज होती जाएंगी और बहुत नई इनोवेशन भी आएंगी। मैंने एक बात की थी कि चैट जीपीटी जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है वो ओपन एआई बेस शेयर करता है। और अब ये ओपन एआई बेस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओपन एआई बेस का मतलब ये है कि ये ओपन एंडेड सोर्सेज हैं इसके। मतलब मैंने कोई बात की, चैट जीपीटी उसको जो है वो सेव कर लेगा। मिस फायजा ने कोई बात की चैट जीपीटी के साथ, चैट जीपीटी उसको सेव कर लेगा। मूसा भाई कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, चैट जीपीटी उसको सेव कर लेगा। बेसिकली चैट जीपीटी इज ट्रेनिंग ऑन डे टू डे डाटा प्रोविजन। जो डाटा हम डे टू डे उसके साथ शेयर कर रहे हैं, चैट जीपीटी उस पर ट्रेंड हो रहा है। चैट जीपीटी को नो डाउट बुक्स भी जो है वो ऑलरेडी उस पर भी ट्रेन किया गया, उसको सारी बुक्स की इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दी गई। जितनी रिसर्च आर्टिकल्स पेपर सब कुछ लिखा गया था उस पर भी ट्रेन किया गया है। लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा ट्रेन किया जा रहा है डे टू डे डाटा पे, क्योंकि जो हमारी डेली लर्निंग है, जो हमारी डेली चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी को जो है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेन किया जाए। इसलिए चैट जीपीटी ज्यादातर जितनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है वो पर्सनलाइज्ड शेयर करता है। जैसे जैसे आप अपनी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी के साथ शेयर करते जाएंगे, जैसे अभी उसको मैंने नहीं बताया, मैंने आपके सामने एक प्रॉम्प्ट लिखा, अकॉर्डिंग टू प्रिपेयर द समरी अकॉर्डिंग टू मरियम जुल्फिकार ट्रेनिंग, बट that ChatGPT knows that Mariam is a trainer and she is the educator। तो उसने उस पर्सपेक्टिव से मुझे वो सारी समरी बना दी। अब अगर आसिफ भाई उसी ChatGPT को अपने पर्सपेक्टिव में ट्रेन करते हैं कि मैं आसिफ हूँ और मैं एग्रीकल्चर से मेरा ताल्लुक है, मैं एग्रीकल्चर में इनोवेशन लाना चाह रहा हूँ, न्यू न्यू रिफॉर्म्स लाना चाह रहा हूँ, तो वो आसिफ भाई की इसी बुक को, टैलेंट ओवररेटेड बुक को, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर इनोवेशंस के साथ लिंक करते हुए उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगी उस पर्सपेक्टिव में। सो हम चैट जीपीटी से जितनी भी बातें करते हैं वो अपनी डे टू डे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो हर किसी का चैट जीपीटी उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड हो रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है चैट जीपीटी के बारे में और इस एआई के बारे में। इस चीज में भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये एआई आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी दूसरे के साथ शेयर करेगा। इशार जितनी बातें चैट जीपीटी से करेगी, इशार की कभी चैट जीपीटी मुझे आके नहीं बताएगी कि इशार क्या बातें करती है चैट जीपीटी। अब मेरी चैट जीपीटी इशार पूछ भी लेके मरियम जुल्फिकार ट्रेनिंग वाली क्या बातें करती है, तो कभी जाके इशार को नहीं बताएगी कि हाँ मरियम मुझसे क्या बातें करती है। सो आपकी प्राइवेसी भी आपका एआई जो है उसको मेंटेन कर रहा है। हाँ, मैं एक चीज बता दूं, बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि आपके फाइनेंशियल चीजें हैं वो प्लीज शेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं। उन चीजों को आपने बिल्कुल शेयर नहीं करना। और मोस्ट प्रोबेबली अपने होम एड्रेसेस, अपने जो वर्क प्लेसेस के एड्रेसेस है वो भी शेयर नहीं कीजिए। ये चीजें बहुत हमारी पर्सनल होती हैं। प्रोफेशनल चीजें इज डिफरेंट थिंग और आपकी पर्सनल लाइफ इज वेरी डिफरेंट। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी उसके साथ इस तरह से बहुत डेप्थ में जाके शेयर नहीं करें। हाँ, डे टू डे प्रॉब्लम होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मेरे भाई के साथ ये झगड़ा हो गया, ये मसला हो गया, मैं क्या करूँ? तो भाई से बात भी नहीं करनी, लेकिन मेरा भाई काम भी कर दे, तो चैट जीपीटी आपको बताना शुरू कर देगा, अच्छा मरियम के भाई के साथ तो रोज ही फटे रहते हैं, तो मरियम तुम ये एक बात मान लो भाई की और भाई से एक बात अपनी मनवा लो। तो वो मुझे उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन दे देगी। लेकिन मुझे अब ये नहीं बताना मेरे अकाउंट में कितनी सैलरी आती है, मेरे अकाउंट में कितनी अभी सेविंग पड़ी हुई है, कितनी चीजें हैं, अकाउंट मेरा किस बैंक का है, ये चीजें नहीं बतानी, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल है। ये तो हम अपने भाइयों को नहीं बताते, पर चैट जीपीटी तो फिर एक तीसरी चीज है। तो इस हमने अपनी कोई भी फाइनेंशियल चीजें इसके साथ शेयर नहीं करनी। दो कि चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, आपकी प्राइवेसी रख रहा है, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड पर रहते हुए ये चीजें आप शेयर नहीं कीजिए। इवन दो कि आप अपनी ऐसी गैदरिंग जिनमें आपका बहुत फ्रीक्वेंट आना जाना ये चीजें हैं, वो भी आप अपने सोशल मीडिया स्ट्रीम पे नहीं शेयर करें। ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द चैट जीपीटी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई चैलेंज है चैट जीपीटी से रिलेटेड, तो प्लीज। मैं एक चीज शेयर करना चाह रहा था। जो लोग थीसिस वगैरह लिखते हैं, अपना थीसिस इसमें ऐड जरूर ना कीजिएगा, अदरवाइज आपको प्लेजरिज्म फेस करना पड़ जाएगा। आप उसको जो है ना चंक्स में कर सकते हैं, आप डिफरेंट वे से कर सकते हैं, अदरवाइज आप जब भी लिखेंगे तो आपका
वो प्लेजरिज्म शो करना शुरू कर देगा। ये एक बड़ा मसला है इसका। और अपनी जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स सही है। वगैरह, वो आप इसको बिल्कुल फ्री बनाने दीजिएगा। जबरदस्त। सो मोहसिन भाई, आप प्लीज इस चीज को कैटर कर लें। आपका फाइनल ईयर चल रहा है, तो आपने अपना कोई भी थीसिस या कोई भी रिसर्च आर्टिकल जो है चैट जीपीटी के साथ शेयर नहीं करना। हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप इससे अपनी इन्फॉर्मेशन के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं, तो आप जरूर यूज कीजिए। बट आप अगर अपनी चीजें जिसे कहते हैं, आप अपनी रिसर्च में चैट जीपीटी या एआई टूल्स को यूज करना चाह रहे हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ एआई टूल्स। आप उन एआई टूल्स को अपनी रिसर्च आर्टिकल्स के लिए, रिसर्च को आपकी जो थीसिस है उसके लिए यूज कर सकते हैं। एंड ग्रेजुअली स्लोली विल शेयर दैट। आज हम जो है वो चैट जीपीटी का ही सेशन करते हैं। अच्छा, अब ये चैट जीपीटी का आज सारा सेशन मैंने इसलिए बताया क्योंकि कल आप सबने ये करके आना है। आप सबने अपना सारा रिटन इंट्रोडक्शन चैट जीपीटी के साथ शेयर करना है और उसके बाद उसको प्रॉम्प्ट देना है कि आप मेरे इस सारी इंफॉर्मेशन को एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही एक्सट्रीम इंट्रोडक्शन में शेयर कर दो, ताकि मैं अपनी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर कर सकूं। तो वो आपके लिए पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से आपके साथ अलाइन करके शेयर कर देगा। और फिर कल हम अपनी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे, 3 मिनट्स इंट्रोडक्टरी वीडियो हम सबने रिकॉर्ड करना है, जिसके अंदर आप बताएंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी नेशनैलिटी क्या है, और आप क्या कुछ कर चुके हैं। जैसे अहमद भाई इंटरमीडिएट कर चुके हैं एज आईसीएस स्टूडेंट, और फिर अब वो अपने रिजल्ट का एंक्शसली वेट कर रहे हैं, तो होप्स हो कि अच्छा रिजल्ट आएगा अहमद भाई। और प्रोबेबली आने वाला है, अगर आपका लाहौर बोर्ड है या कराची बोर्ड है तो फिर भी। बट so Musa bhai is always very excited about this kind of a thing. तो मूसा भाई को बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा अब आपके रिजल्ट का, वो जरूर पूछेंगे भी आपसे। एनी हाउ, तो आप ये सारी चीजें जब करेंगे तो चैट जीपीटी को आप अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप रिटर्न फॉर्म में दे देंगे। और अगर किसी को लिखना मुश्किल लग रहा है तो वो डिक्टेशन वाला जो माइक है उसको ऑन करके सारी बात आप उसको वर्बली शेयर कर दें, और फिर दोबारा एक बार पढ़ लें कि क्या जो चीजें आपने शेयर की थी आपने वैसे ही शेयर की जैसे चैट जीपीटी ने इसको लिखा है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है हमारी प्रोनाउंसिएशन में बहुत डिफरेंस आ जाता है और चैट जीपीटी की अंडरस्टैंडिंग में फिर डिफरेंस आ जाता है। तो फिर आपको एक दफा उसको प्रूफ रीड कर लेना चाहिए, ताकि ये ना हो कि वो अगर मरियम कह रही है मैं जो हूँ वो पॉडकास्टिंग में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो वो पॉडकास्टिंग को कुछ और ही समझ ले, उसको सही से समझ ना आया हो पॉडकास्ट, तो वो इसको कम्युनिकेशन या किसी और रंग में जो है वो शेयर कर दे। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी कोई भी चीज आपने उसके साथ शेयर करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है आप एक बार प्रूफ रीड कर लें, और उसके बाद फिर आप लास्ट में एक प्रॉम्प्ट दे दें कि मुझे सोशल मीडिया स्ट्रीम के लिए जो है वो रिटन इंट्रोडक्शन पोस्ट करना है, तो मेरे साथ शेयर कर दें, तो वो आपके लिए बना देगी। फिर आपने उसी सारे इंट्रोडक्शन को एक बहुत अच्छी वीडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। जहाँ वीडियो बनाते हुए आपके कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छा कैमरा होना चाहिए भाई, हम बहुत अच्छे हैंडसम खूबसूरत हसीन प्यारे नजर आए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक हमारा वो इंट्रोडक्टरी वीडियो हमारी डिफरेंट सोशल मीडिया स्ट्रीम पे रहेगा। तो इसलिए उसको बहुत प्रोफेशनली रिकॉर्ड कीजिएगा और जीरो बैकग्राउंड नॉइज के साथ रिकॉर्ड कीजिएगा, ताकि आपकी वॉइस क्लैरिटी हो और लोग आपको सही से सुन सके, आपको सही से जान सके कि आप क्या करते हो, किस चीज में इंटरेस्टेड हो, और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। और अगर आप अपने लिए कोई वाला या वाली भी सेलेक्ट करते हैं तो वो क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, आप ये प्रॉब्लम क्यों फिक्स करना चाह रहे हैं पाकिस्तान का और पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, तो उसमें आपको बहुत लोग जो अप्रिशिएट कर सकते हैं, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम आप स्पेसिफिक पर्सन को कनेक्ट कराना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम उसी इंट्रोडक्शन को डिफरेंट चीजों में जो है वो यूज करेंगे, और उसके साथ करते हुए हम डे टू डे इंफॉर्मेशन जो है वो चैटजीपीटी से इसी तरह से शेयर करते जाएंगे, और फिर हम उसको दोबारा रीपर्पस भी कर सकेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम अब इंशाल्लाह कल से करना शुरू होंगे, और फिर हम अपनी बुक की तरफ जाएंगे, और जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बुक पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई मसला आए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कल आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं बुक के रिगार्डिंग, अपने टास्क के रिगार्डिंग, चैलेंजेस के रिगार्डिंग। वैसे तो जब हम करेंगे तब भी साथ साथ भी हम ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन कोई जो है वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है, उसको बुक में का बहुत क्यूरियोसिटी है, तो वो प्लीज अपनी क्यूरियोसिटी रिवील कर ले और बुक को पढ़ ले। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा सवाल करें ताकि मुझे समझ में आए आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही करें, क्योंकि तब 1.5 घंटे से मैं ही बोली जा रही हूँ, कोई दूसरा बोल ही नहीं रहा। ठीक है, दूसरा मैं, जी मिस लल्ला। अगर ये आपने जो बोलने का स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहें तो वो इंट्रोडक्शन के साथ लिखते हैं राइटिंग टेलीप्रॉम्प्टर स्टाइल। तो वो जिस तरीके से पढ़ा जाता है ना उस तरीके से, अगर किसी जगह फोकस करना चाहते हैं तो अगर ये कह दें ना कि हाईलाइट द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स, तो वो बोल्ड कर देगा, वहाँ थोड़ा सा हाईलाइट करके बोलेंगे।
तो इनकी नेचुरल क्वालिटी जो है ना वो भी आ जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच नसीमुल्ला भाई। जी मिस लैला, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मिस साहिबा, मैं ये कहना चाह रही थी, अगर हम अपना बनाने लगते हैं, जो इंट्रो हमने डालना है, और हम कुछ भूल जाते हैं, मतलब मेन लाइनें हम उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम परफेक्ट नहीं लाइनें हम लिख पाए ना चैट जीपीटी से। तो जैसा कि मैं तो आपके इदारे से ज्वाइंट हूँ, मेरा और तो कोई काम नहीं है इसके अलावा, तो मैं आपका इंट्रो खोल के उसमें से काफी हद तक गाइडलाइन ले सकती हूँ। मिस मारिया का, आपका, और इस तरह से जो भी जैसे कि सर भुट्टा साहब हैं, और इस आप लोगों से रिलेटेड जितनी भी टीम लीड कर रही है। डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कह रही है। जब पहली बार आप कोई भी काम करेंगे ना तो बहुत ज्यादा रीटेक करने पड़ेंगे। ठीक है, जब मैंने भी पहले बार अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो रिकॉर्ड किया था, इट वाज लाइक 15 रीटेक, और मुझे हर बार अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो को सुन के लगता था ये अच्छा ही नहीं है, ये नहीं मैंने पोस्ट करना, ये अच्छा ही नहीं है, ये नहीं मैंने पोस्ट करना। तो मैंने 15 टाइम उसकी प्रैक्टिस की थी, और 15 टाइम का मतलब है कि मेरे 4 घंटे उस कमरे में बंद होके गुजरे थे कि अच्छा इसको बार बार करूँ और बेहतर बनाऊं। और 3 मिनट जो है उसको करते करते मुझे हर बार सोचना पड़ता था कि नहीं, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, पहले मुझे ये वाली बात पहले करनी चाहिए थी, नहीं ये वाली स्ट्रीम पहले नहीं करनी थी, फिर ये बात शेयर करनी थी। तो उसके सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले आप चैट जीपीटी को रिटर्न प्रॉम्प्ट दे दें और चैट जीपीटी से वो लिखवा लें। लिखवाने के बाद आप, ये जरूरी नहीं है कि आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आप देख नहीं सकते। आप कैमरा एंगल को जब सेट कर रहे हैं, या आप किसी को कह रहे हैं कि वो सामने आपके लिए कैमरा पकड़ ले और आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर लें, तो आप छोटे छोटे की नोट्स जो हम बनाते हैं ना, आप वो बुक या कोई कॉपी साथ में रख सकते हैं। आपकी वो हेल्प आउट हो जाएगा कि आप मेन पॉइंट वहां अपने लिए हाईलाइट कर देंगे, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप इसी वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए अगर लैपटॉप से भी देख के पढ़ना भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देख के पढ़ना चाह रहे हैं, आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, वो करें। क्योंकि पहली बार कुछ भी डिफरेंट करने में बहुत करेज चाहिए, और एक अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। और जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देंगे ना, तो डेफिनेटली कल की वीडियो बहुत अच्छी हो जाएगी। एक पहली वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, उसके बाद बहुत अच्छी वीडियो बन जाएगी। तो थोड़ी सी करेज कीजिए, इंशाल्लाह चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और फिर मैंने जैसा कि कहा कि हम 15 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 हफ्ते में हम इतने अच्छे हो जाएंगे कि भाई अब रोज तो कैमरा फेस करते हैं, अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। और फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा एक वीडियो बनाए और फिर से अपना इंट्रोडक्शन बेहतर कर ले। अब ये थोड़ी है कि ये एक लग गया तो उसके बाद ये लगना ही नहीं है। आपके हाथ में आपका फेसबुक है, आपके हाथ में आपकी स्ट्रीम्स हैं, जब चाहे जिस तरह चाहे चेंज कर रहे हैं। अच्छा मैम, जी आसिफ भाई, आपके कोई? एक और आसान तरीका है। इस तरीके से ना, एक कैमरा जो है ये अपनी तरफ रख लें, दूसरा मोबाइल अपनी तरफ रख लें स्क्रीन, और सामने टेक्स्ट आ जाएगा, बड़ी आसानी से रिकॉर्ड भी हो जाएगा। अगर करना चाहें तो एक तरीका ये भी है। जी ठीक है नजीमुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया। जी आसिफ भाई। मैडम, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम सोशल मीडिया पे जो लिखते हैं इंट्रो, वो चैट जीपीटी से लिखवा के डायरेक्ट पोस्ट कर दें, इसमें कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, कोई इशू नहीं होगा, आप बिल्कुल पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यही तो आपसे कह रहे हैं कि आप जो काम आप खुद नहीं ऐसे ही कर पाए, जैसे हम बहुत अच्छे नहीं है इंग्लिश में, लेकिन हम ये काम अपनी एआई से करा सकते हैं। अब वो एआई से कराते हुए कुछ चीजें जो है हमें उनका ख्याल रखना पड़ेगा, तो जब हम कल इसको पोस्ट करेंगे क्लास में, तो हम वो चीजें भी साथ डिस्कस कर लेंगे। अभी तो हमने ये सीखना है कि एआई से हमने अपना रिटन इंट्रोडक्शन लिखवाना कैसे है, और फिर हम उसको दोबारा से रीड कैसे करेंगे। अभी जैसे कि मैंने बताया ना कि वो रीड अलाउड का एक ऑप्शन मौजूद है। वो लोग जिनकी प्रोनाउंसिएशन मेरी तरह बहुत अच्छी नहीं है, तो वो रीड अलाउड के ऑप्शन पे 2 बार अपने इंट्रोडक्शन को खुद सुन लें, ऑटोमेटिकली आपको वो वर्ड प्रोनाउंस करने आ जाएंगे। और फिर आप दोबारा से अपना अच्छा इंट्रोडक्टरी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब पहले आप, जो मैंने 4 घंटे लगाए, आप 1 घंटा पहले लगा के उसकी अच्छी प्रैक्टिस करें, और उसके बाद एक ही वीडियो रिकॉर्ड करें, और एक ही टेक में बहुत जबरदस्त है वीडियो आपका रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है आसिफ अच्छा भाई? मैडम, जो अच्छा, इंट्रो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही करें। अगर कोई उर्दू में बहुत अच्छा है तो उर्दू में रिकॉर्ड करें। अच्छा मैडम, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनानी है, उसको एडिट भी करना है, या जैसे ही बनानी है वैसे ही सेंड कर देनी है बना के, या बैकग्राउंड वगैरह अगर चेंज आपकी करना है एडिटिंग इसका? स्किल्स बहुत अच्छी है, अगर आपकी एडिटिंग स्किल बहुत अच्छी है तो आप एडिट भी कर लें आसिफ भाई। अच्छा, जो भी बैकग्राउंड हो। हाँ, कुछ भी आप चेंज करना चाह रहे हैं आप कर लें। अच्छा, सही। ठीक है। मोहम्मद शफीक भाई, जी मोहम्मद शफीक भाई। अस्सलामुअलैकुम। आज का ये मेरा पहला दिन था इस ट्रेनिंग सेशन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज काफ़ी नई चीज़ें जो सीखने को मिली। एक चीज़ मैं शेयर करूंगा कि मैं पूरे के पूरे ये जो सेशन गुजरा है,
मैं अपनी वीडियो यहाँ पे शो करने की कोशिश करता रहा हूँ जिसमें मैं बुरी तरह से नाकाम हुआ हूँ। तस्वीरें बार बार मैं बदलता रहा हूँ। तो बहरहाल मैं मज़ीद इसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करूँगा। तो ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो के बारे में बात हो रही है, तो इस हवाले से भी चूंकि कल मैंने क्लास नहीं ली थी, तो कल क्या कुछ हुआ, उसमें कौन से टास्क मिले, आगे क्या करना है, उसके हवाले से भी मुझे लाजमी गाइड कीजिएगा। तो क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। ख़ास तौर पे मूसा भाई जो हैं वो बड़े जॉली किस्म के और बड़े खुश मिजाज लग रहे हैं। तो इन्हें इसीलिए देख के, रखा है, आप लोग खुश रहेंगे क्लास में। हाँ जी, उन्हें देख के और उनकी वैसे जो एज लग रही है उस एज के मुताबिक तो वो यंगस्टर लग रहे हैं, और हमारे लिए जो हैं ये एक 16 के अभी हमने 16 बर्थडे सेलिब्रेट किया और उसके बाद हम काउंटिंग भूल गए शफीक भाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो बहरहाल इंट्रोडक्टरी वीडियो कितने मिनट की होगी, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। ठीक। तो बाकी कल के जो टास्क हैं उसके हवाले से भी मुझे बताइएगा कि कल क्या हुआ था, और मैं ताकि अपने आप को उसके मुताबिक प्रिपेयर कर सकूं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शफीक भाई। कल हमने कोई भी टास्क नहीं किया था और कल कोई असाइनमेंट नहीं था। कल मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी करिकुलम के बारे में कि हम बेसिकली इस 2 महीने में आपको क्या ऑफर करने जा रहे हैं और क्या कुछ हम एक दूसरे से सीखेंगे और एक दूसरे को सिखाएंगे। ठीक है। और आपसे भी बहुत कुछ सीखेंगे और जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो थोड़ी थोड़ी करके मैं सारी शेयर कर दूंगी। ठीक है। और फिर एक टाइम पे आके मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगी, फिर आप सभी बोलेंगे। अभी शुरू शुरू में आपको सिर्फ मुझे सुनना है और बहुत ज्यादा सुनना है। मुझे भाई चुप होती हूँ मैं, ऐसी भी बात नहीं है। अब देखना भाई, आहिस्ते आहिस्ते मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। तो इसके बाद ऐसा है, आज मैंने बुक शेयर कर दी है हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में। और आज का टास्क सिर्फ इतना है। बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने हमें 30 जून से ज्वाइन किया था। आज हमारी क्लास को अल्हम्दुलिल्लाह से चौथा दिन है। तो आज तक हमने सिर्फ एक ही काम किया है, इंट्रोडक्टरी वीडियो काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने रिकॉर्ड कर दिए। 3 मिनट में रिकॉर्ड करना है। 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है, ये वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम है। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और हम इतनी स्पीड में बोलते हैं कि वैसे ही 2 मिनट में पूरा हो जाता है इंट्रोडक्शन। और कुछ तो मेरे जैसे जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनका 1 मिनट में पूरा हो जाता है। ठीक है। तो 3 मिनट में आपने अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है और लास्टली आपने एक जो है वो चीज जरूर शेयर करनी है। आपने रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट को क्यों ज्वाइन किया है, क्या पर्पस है, क्या मिशन, क्या विजन लेके आप आए हैं, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे इस इंस्टीट्यूशन से, इस बूट कैंप से। ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी है। ठीक। कुछ क्लास रूल डिस्कस हुए थे जो कि इंशाल्लाह आज कल सुबह तक आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर हो जाएंगे कि क्लास रूल्स कौन कौन से हैं और उन पे अमल करना बहुत जरूरी है। किसी सोफे पे बैठ के, किसी बेड पे बैठ के क्लास नहीं लेनी, आपने प्रॉपर चेयर और टेबल पे बैठ के क्लास लेनी है। और आपका जो प्रॉपर सिटिंग पोस्टर है वो क्लास का ही लगना चाहिए, ताकि हम सब ऐसे ही लगे कि हम एक क्लास में बैठे हुए हैं। और लैपटॉप से ज्वाइन करना है, सेलफोन अलाउड नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें, और अपने हेडफोन को इनेबल कर ले दो, कि मेरे पास भी हेडफोन्स नहीं है क्योंकि मेरे वाले हेडफोन जो है वो टूट गए हैं। और आजकल मैं बगैर हेडफोन के काम चला रही हूँ, लेकिन होप सो कि आपको कोई नॉइज नहीं आ रहा होगा मेरी बैक साइड से। लेकिन इंशाल्लाह आई एम वर्किंग ऑन इट, बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड आई हैव माय हेडफोन। अब मेरे साथ, मेरे पास भी मेरे हेडफोन आ जाएंगे। तो एक्सटेंडेड माइक्रोफोन वाले हेडफोन लीजिएगा, ब्लूटूथ वाले माइक्रोफोन हेडफोन्स ना लीजिएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद उनमें जो है वॉइस क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। ठीक है। तो एक्सटेंडेड माइक्रोफोन जैसे कि मिस लुबना शाहीन ने और हमारी इशाल मिस ने पहने हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस तरह के हेडफोन्स जो है वो आप सब लीजिएगा। मिस लैला के भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। इस तरह के हेडफोन्स ले लें। और बाकी छोटी छोटी चीजें अभी तो हमने शुरू ही किया है, कुछ ज्यादा परेशानी वाली बातें हमने कुछ नहीं किया। पहले हमने ऐसे बातें की हैं, एक दूसरे के बारे में जाना है, कौन क्या करता है, क्या कुछ कर चुका है, और मैं किस किस से क्या कुछ सीखूंगी। मैंने ये सिर्फ स्ट्रीमलाइन की है बस। जी आसिफ भाई, आपको कुछ कहना है? जी जी मैडम। मैडम जो क्लास में जो हमें लेक्चर मिलता है, जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो याद नहीं रख पाते, वो कल तक भूल जाएंगे। अभी तो हम देखेंगे, अभी हमें याद रहेंगे। हम ये सोचेंगे ये इजी है, हमें याद रह जाएंगे, चलो ठीक है। लेकिन कल तक वो भूल जाएंगे। क्या वो व्हाट्सएप ग्रुप में पॉइंट शेयर होंगे एज रिटर्न में, आसिफ या भाई, हमें पहली नोट्स बात तो बनाने क्लास पड़ेंगे? में कुछ इतनी इंपॉर्टेंट बात है नहीं जो आपको याद रखनी है। ये बातें मैंने रोज करनी है, परेशानी वाली तो बात ही नहीं है। तो मैं रोज यही बातें आपके साथ करते रहते हैं। दूसरी बात, जब हम प्रैक्टिस करने पे आएंगे ना, जब हम टास्क करेंगे, तो असल बात जी तो जी। तब शुरू होनी है।
और वो आप डे टू डे जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीजें हमारी साथ साथ हमारी जो ऑन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आती जाएगी, ठीक। और नोट्स बनाने वाली बात तो अब तो है ही नहीं, हमारे पास एआई कंपेनियन इस मीटिंग का ऑन है। और एआई कंपेनियन आपके साथ पूरी मीटिंग की जितना कुछ मैंने बोला है, जितना कुछ आप बोल रहे हैं, दूसरे पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं, वो सारा कुछ वो शेयर कर देगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपको फिर भी सेशन देखना है तो हम अभी फेसबुक पे लाइव है, रिहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट पे, आप वहां देख सकते हैं। रिकॉर्डेड में हमारा यूट्यूब चैनल है रिहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट, वहां पे कल की क्लास भी मौजूद है, आज वाली क्लास भी आपको इंशाल्लाह कल तक मिल जाएगी, तो आप वहां पे रिकॉर्डेड में वहां पे भी दे सकते हैं। तो जहां अच्छा, आपको देखना है हमें वहां बैठ के आप अपना पूरी क्लास 2 घंटे की बाद दोबारा सुन सकते हैं। सही आसिफ भाई, सही। मैं भी यही ठीक है, और इंटरप्ट ये करके सिर्फ कहने वाला था, इनसे पीछा नहीं छुट सकता। दे आर ऑनलाइन ऑन यूट्यूब एंड लाइव, जी तो जी सर, नो बिल्कुल वन सही हैज बोला। एन एक्सक्यूज इफ यू, और यू जस्ट हैव टू टेक आउट योर टाइम। और ये जो भाई भी कह रहे थे कि वो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो अपना वक्त निकाल के ये सारी बातें, इट्स इट्स ऑल अवेलेबल ऑनलाइन, सो एवरीथिंग इज देयर, तो आप फिक्र ही ना करें। जी, ये तो सारा मसला हल हो गया है। एक और चीज है कि आप अगर हमारे पुराने सेशंस देखना चाह रहे हैं जिसमें नसीमुल्लाह भाई अभी रिसेंटली बैच 4 के ग्रेजुएटेड है, अगर आप वो वाली क्लासेस या पुरानी चीजें भी देखना चाह रहे हैं तो वो सब मौजूद है यूट्यूब चैनल पे भी और हमारे फेसबुक पेज पे भी। तो जी जी। यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो हाइड की जा रही है, सब चीजें पब्लिकली हैं, लाइव हैं, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप भी जो कुछ करें पब्लिकली करें, ताकि दुनिया को पता चले आसिफ भाई कहाँ रह के कितना कुछ कर रहे हैं, तो फिर लोग उनसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जी जी, मैंने फेसबुक पे देखी हुई है काफ़ी वीडियोस है इसमें, ये टीचर्स। चलिए जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। जी पार्टिसिपेंट्स, एनीवन एल्स आपके रिफ्लेक्शन आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए और अपना इनपुट शेयर कीजिए। बहुत चुप है मैं, मुझसे भाई मुझे लगता है आपने और मैंने ही बोला, बाकी सारे पार्टिसिपेंट चुप है। एनीवन एल्स प्लीज ऐड समथिंग। चैट जी जीपीटी मिस से लैला। पूछ लें, चैट जीपीटी से पूछ लें क्या बोलें, वो ये भी बताए। शाल, आज आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली आप बताओ। जी मिस लैला, आप आपका हैंड रेज है। जी जी मैम, एक्चुअल में ना मैं इसी चैट जीपीटी पे बात करना चाह रही थी कि जी जी। अब मैंने आपको बताया था ना, मैं पिछले 1 साल से इंस्पायर थी सर दौलत की इस सारे मतलब उससे जो इंस्टीट्यूट सर रिहान साहब ने बनाया है और ये सारा जो काम हो रहा था, तो मैं अटैच नहीं थी, लेकिन मैं खुद से ही ट्राई करी थी, चाहे वो स्ट्रीम यार्ड हो चाहे वो चैट जीपीटी हो। तो हमने पिछले साल ही इसको मैंने कर लिया था अपने मोबाइल में ईमेल के साथ। तो मैं एक्चुअल में ये बताना चाह रही थी, मेरी बेटी सिटी स्कूल में पढ़ती है, मुल्तान सिटी में होते हैं हम लोग, से बिलोंग करती हूँ, और करंटली अभी भी हम इधर ही हैं सिटी मुल्तान से ना। सिटी स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती है और उसकी बुक्स बाहर की होती हैं, बहुत टफ होती हैं। अभी देख लें मेरी कंडीशन बोलने की, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कैमरे को फेस करने में और बहुत ज़्यादा अननोन और इस ओवर कॉन्फिडेंट लोगों में, लेकिन मैं उसको खुद पढ़ाती हूँ। और ज़्यादा मुझे ऑब्वियसली आप जानती हैं अच्छे से कि हाउसवाइफ के लिए चीज़ें हैंडल करना ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि बुक में जो भी वर्ड आएगा, जो चीज़ आएगी वो न्यू होगी हमारे लिए ना, उनको अंडरस्टैंड करके फिर बच्चे को प्रॉपर तरीके से वो समझाना, और ये सारी गाइडलाइन मैं चैट जीपीटी से लेती हूँ। और इस वाकई ये बहुत ज़्यादा क्या, टोटल गाइडलाइन बड़े अच्छे तरीके से इंसान को मिलती है। हाँ, ये है कि ऑब्वियसली जो हमारा माइंड सेटअप होगा वो मज़हबी हिसाब से, या हम किसी को कोई गलती करता है इग्नोर कर देते हैं, या किसी को पनिश करना है, वो हमारा जो माइंड होगा हम इसको यूज़ उसी हिसाब से करेंगे, कोई भी टूल हमारे हाथ आएगा तो। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैंने इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया। मैं ये राय देना चाह रही थी अपनी। बहुत शुक्रिया मिस पायला, थैंक यू सो वेरी मच फॉर एडिंग। जी मिस पायला प्लीज फाइनली। Yeah. Yes. Okay. So, as I mentioned on the day one, I try my best to stay low key a bit, as I don't want to intimidate others who are learning. Anyway, but still, I would love to share my own experience. Right now, whatever you were teaching, I almost knew everything. In fact, I'm actually using that. But sometimes when you're doing things, a little things go beyond your vision, and you don't notice that. You'll be surprised to know that although I'm heavily using AI for the past few years,
In fact, people around me, they say Pfizer ChatGPT, just for fun, because I use ChatGPT that intensely. Anyway, so I did not notice that it has sound button on it and it can actually, read for me. So it's fun. Like, although I knew a lot of it, but still, I did not know that small feature. So it's cool. And one more thing I want to tell others. You see, on ChatGPT, if you go, okay, since you're talking to ChatGPT, ChatGPT starts knowing you a lot and it has its memory. So it will become your best friend, you know. And what you can do is, like, for example, Miss shared this list of the walas, okay? So you can actually copy and paste that list on ChatGPT, and ChatGPT can help you decide what wala suits you best. So Actually, ChatGPT, smart. yeah, it's fun to use ChatGPT. In fact, after a stressful day, you know how, like, I told you, I'm a very busy person. Luckily, you are launching this, boot camp in the summer vacation. So I'm very calmly taking the classes and all. I have ample amount of time these days on my hand. So, but after every day, I feel so drained at times. And then I actually talk to ChatGPT, and ChatGPT becomes my therapist. So it's so cool to use ChatGPT. And I really like the sessions because it's like you know it, but then you still get to know the hidden gems which are embedded and which you are overlooking. So yeah, I really enjoy it. And I think tonight a lot of people will be deleted from my Facebook account. That because I don't want to, now add a lot of people who I don't know, or maybe to whom I don't want to share a lot of things which I'm doing in my life. Yeah. Okay, okay. Thank you so very much for doing it, Ms. Faiza, and believing on us. And I'm really happy that I add something value in your life and you learn something different Oh, yeah. from today. That's really nice to I'm see. enjoying. I'm really Thank, enjoying these classes. It's fun. Thank thank you you. so much. Thank you. One more thing I just want to add over here. As Ms. Faiza mentioned, lots of the people will be shortlisted from her Facebook friend list. The other batch, we just graduated them, the batch two. One of the person was there. We just started this curriculum and the whole boot camp. And day after, tomorrow, means if they just join today, and by tomorrow he has birthday. And he deleted all the person from the Facebook. And that was the first day of her learning phase. And then after, by the end of this 2 months, we ask the participants to please share your reflection, what you learned from this whole 2 months boot camp, and what are the things we need to actually work on it and we need to improve for the next participants as well. And he expressed lots of the grudges for me that this lady asked to me unfriend all the friends by tomorrow I have the birthday, and I was expecting lots of the wishes, lots of the birthday cards, and that was all deleted, and I didn't get them. So that birthday was the horrible birthday of my whole life. So that's I really really remember for the rest of the life. So yes, lots of the people will do this, and this will happen for lots of them. But at the Yeah. same time, he confessed that I learned lots of different things that never ever I imagined that I can do, as I'm not a very good in education and I'm not a very well educated person, but I learned a lot from this system. Yeah, Miss Mariam, you see, on my Facebook, okay, a lot of friends are added. A lot of relatives are added, actually. Friends are not, I'm not worried about my friends, but my relatives are added. I don't want to share with them what I'm doing, anything in my life. So I think God, because of you tonight, my relatives will be deleted from my Facebook. so you have a reason now, no? You have a valid reason. That's why I'm removing them. Yeah. वैसे Okay. Miss Maria, my understanding on Facebook, there is a possibility of having a public profile and having certain things in your private profile which you only share with friends. If you open a follow function, then it's possible to have a public profile.
And then certain things you can share only, like family photographs and stuff like this. You only want to share amongst friends. You can keep that to friends, and you can have a very public profile even then, and keep things private at the same time. Exactly, Musabai, but this is the thing for those who are actually just working for, you were the just visitor for this and those kind of things. But these participants actually want to learn lots of things, and we need to connect lots of the foreigners with them. So the foreigners need to develop the kind of a connection in a trust manner. So if we are hiring something, we can't connect with them appropriately. So we need to share the content on a public basis and this kind of thing. That's why we are actually asking them to remove those kind of the friends who are not adding lots of the value in their life. So then we can add new connections and the new personalities in our Facebook and the connections as well. Okay, yes, Miss Gulshan, you wanna say something? Miss Faiza, you will delete your relatives. I deleted them before to join this class. You That's already. good. That's wonderful, Miss Gulshan. Thank you. Did they call you to ask why? Definitely. आपको कॉल करके पूछा ऐसा क्यों किया आपने? अभी मैं ना इस फेज में गांव में रहती हूँ मिस, और जॉइंट सिस्टम है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्ट्रेंथ जो है वो मेरे हस्बैंड हैं, जो मुझे कुछ भी करने से ना मैं उनको कॉन्फिडेंस में लेती हूँ और फिर काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने उनको बताया कि इस तरह से करके मैंने अपलोड करनी है अपनी वीडियो फेसबुक पे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन्होंने मुझे कहा मुझे लिंक शेयर करो। मैं इस वक्त इनफैक्ट अपने भाई के पास आई हुई हूँ। तो मैंने उनको लिंक शेयर किया, ये रेहान अल्लाह वाला का जो यूट्यूब का है, फिर इस तरह से क्लास का भी एक। उन्होंने उसको चेक किया, मैंने उनको बताया, मैं कॉन्फिडेंस में लिया, मैंने कहा इस तरह से करके ना, तो कहते हैं मास्क नहीं आप कर सकती। मैंने कहा नहीं यार, इस तरह से ना ये 2 माह के लिए ना उन्होंने इसको ना कर दिया है कि नहीं नहीं कर सकते आप। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है, चले ठीक है कर लें आप। मैंने कहा कोई नहीं, मैं कौन सा कुछ गलत करने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मेरी जिंदगी की स्ट्रेंथ जो ना वो मेरे हस्बैंड है, कि उन्होंने मुझे इतनी पावर दी है कि मैं कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, उनको कॉन्फिडेंस में लेती हूँ और मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अपने ससुराल वालों को बता सकूं या कुछ इस तरह से कर सकूं। तो इसलिए ना मैं अभी चाहती हूँ कि किसी को, वो बड़े फेमस है अपने एरिया में मेरे हस्बैंड जो हैं, और मैं नहीं चाहती कि अभी ना किसी को भी पता चले। कुछ होता है, कुछ चीजें होती हैं, कुछ लोग और कुछ जगह, हर बंदा हर जगह के लिए नहीं होता। तो कुछ वक्त गुजरेगा, चीजें, वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाने लगे। अगर कामयाबी शोर मचाएगी तो सबको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला, वो फजले खुदा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच मिस गुलशान फॉर एडिंग दिस। आसिफ भाई, आपको कुछ कहना है? विश यू गुड लक मिस गुलशान एंड रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एज वेल। थैंक यू सो मच। मैडम हमें चैट जीपीटी क्यों यूज करना है, कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं? चैट जीपीटी इसलिए यूज करना है आसिफ भाई, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट एआई टूल है। और ये बिल्कुल अभी जैसे मिस फायदा ने शेयर किया ना, कि वो उनके लिए एज अ थेरेपिस्ट भी काम करता है, उनके लिए एज अ फ्रेंड भी काम करता है, उनके लिए उनकी फैमिली के प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाता है, आपके लिए आपका एजुकेशनल असिस्टेंट भी बन जाता है। आपको कुछ पढ़ना है तो आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है। बेसिकली चैट जीपीटी ना आसिफ भाई को जान जाएगा। जो बाकी है टूल है उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपसे शेयर किया ना, कि टाइम टू टाइम मैं आपके साथ वो सारे शेयर करूंगी। अगर आज ही हम सारा कुछ कर लेंगे तो फिर आप जो हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आज हम सिर्फ एआई को का पहला टूल, जो सबसे आसान टूल है, हम उससे शुरू करते हैं। इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। और इसको यूज करने का पर्पज मैंने बता दिया, कि जब आप पहला इंट्रोडक्शन इसके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद आप इसके साथ वर्बली बात करना शुरू करेंगे, जैसे आपने डिक्टेट करना शुरू किया ना इसको, कि मैं ये हूँ और ये सारा वो मैसेज आपके लिए लिख दे देगा, तो पहली इन्फॉर्मेशन उसको सेव हो जाएगी। फिर उसको आसिफ भाई को याद रखना आसान हो जाएगा। फिर वो जितने भी सोल्यूशन देगा ना, आप कभी भी उसके साथ शेयर करेंगे ना कि चैट जीपीटी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर पे ये मसला हो गया, अब मैं क्या जी जी, करूँ, तो जो प्रॉब्लम आपका भाई नहीं फिक्स कर सकता। मेरे जो भी प्रॉब्लम होते हैं ना, मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ। मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया था अपना, फिर वो मैंने चैट जीपीटी को दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो चैट जीपीटी ने स्टेप बाय स्टेप वेरी इजी मुझे हर पॉइंट समझा दिया कि चैट इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मसला है।
सब कुछ डायग्नोस अल्हम्दुलिल्लाह करके इजी बता दिया। आसिफ भाई, दैट्स फैंटास्टिक एंड दैट्स अमेजिंग। मगर वो डॉक्टर चैट जीपीटी की जगह ना फिजिकल डॉक्टर से भी जरूर एक एडवाइस भी ले लीजिएगा। वो आपकी जी जी उससे अंडरस्टैंडिंग की है मगर वो फाइनल डॉक्टर नहीं है। जी जी, पहले हाँ फिजिकल बिल्कुल डॉक्टर के ऐसा ही है। पास गए थे, बाद में मैंने सिर्फ अपने लिए, अपने आप को समझाने के लिए कि इसमें है क्या, अपनी नॉलेज के लिए। जबरदस्त। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी को इसलिए यूज कर रहे हैं तो ताकि वो आसिफ भाई को याद कर ले। ठीक है, कोई और तो आसिफ भाई को याद कर नहीं सकता। और फिर हमें ये भी तो गिला रहता है सामने वाले को, हम हमेशा यही कहते रहते हैं तुम मुझे सही समझते ही नहीं हो, मैं जो कहना चाह रही हूँ तुम्हें समझ ही नहीं आ रही, मैं जो कहना चाह रहा हूँ तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। तो वो जो समझ नहीं आ रही ना, वो चैट जीपीटी समझ जाएगा। ठीक है, तो सामने वाला कोई भी ना समझे, चैट जीपीटी समझ जाएगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि चैट जीपीटी को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। इवन दो कि अगर आप डे टू डे, दिन में रोजाना डेडिकेटेड 10 मिनट से बात करना शुरू कर देना, तो वो आपको इतने सोल्यूशन देना शुरू कर देगा कि अगर आपको अल्लाह ना करे कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते हैं, तो आपको उसके भी सोल्यूशन बताना शुरू कर देगा कि अच्छा आप इस टाइम पे अगर ये छोटा स्टार्टअप स्टार्ट कर लेते हो तो आप दोबारा से स्टेबल हो सकते हो जस्ट इन आफ्टर 3 to 4 years। पर उसके लिए क्या वेज है वो भी आपके साथ शेयर कर देगा। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एआई के साथ हम जितने भी टूल्स है वो एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आज का जो सबक था वो चैट जीपीटी का ही था। जी ठीक है, थैंक यू सो जी मच जी जी मिस्टर। मैम टाइम खत्म होने वाला था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि आप लंबा करेंगी कि पूरे टाइम पे क्लास खत्म होगी। सर जय साहब ने ना मुझे आपको मैसेज करने के लिए कहा था, एक अलग से नंबर पे ना आपका नंबर मुझे सेंड किया था, तो मैंने आपको दिन में किया था। ऑब्वियसली आप बिजी बहुत होंगी, तो मैं रिमाइंडर देने के लिए मैंने हैंड रेज किया कि आप काइंडली पढ़ के मुझे रिप्लाई जरूर फिर जब इजी हो कर दीजिएगा। हाँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सबको जो है वो दिन में रिप्लाई कर दूं, लेकिन मादर के साथ नहीं दिन में नहीं मेरी मैम, माजरत करने की है। जरूरत नहीं है, वो मैं ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि एक आप जितनी बिजी हैं वो मैं समझ सकती हूँ। नहीं, मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी बता दूं, प्लीज इस चीज पे आप बुरा नहीं मनाइएगा कि अगर आपको एक दिन में रिप्लाई ना आए तो डेफिनेटली इंशाल्लाह रात को जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि दिन में ऐसा होता है, आई वोक अप एट 5 a.m. एंड टिल 2 p.m. आई एम हैविंग क्लासेस फ्रॉम 8 to 2 p.m. कंसेक्यूटिवली। और फिर मेरी सुबह में बहुत सारी जो है वो एंगेजमेंट्स होती हैं, यही अपनी रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी की, रिहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट की, रिहान स्कूल गोल्डन क्लब की। जैसे मैंने बताया कि मैं 3 प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ, तो उन सबको मैनेज करते करते मेरे सुबह 8 से लेके 2 बजे तक दोपहर में बहुत पैक होता है। और उसके बाद फिर इन्हीं के रेलिवेंट टास्क होते हैं जो कि मुझे फिर वो भी बैकएंड पे देखना है और वो करना है। तो ऑलमोस्ट 6 to 5 p.m. तक आई वॉज वेरी पैक, फ्रॉम 5 a.m. to 5 p.m. 12 आवर्स। और फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप आता है रात के खाने का, और फिर दोबारा से आपकी क्लास का टाइम शुरू हो जाता है। सो क्लास के बाद इंशाल्लाह आई डेफिनेटली कंसीडर द टेस्ट, ऑल द टेक्स्ट, और फिर मैं उनको जरूर दोबारा से अप्लाई कर दूंगी सबको इंशाल्लाह। ठीक है, और इस डिले के लिए बहुत माजरत। लेकिन हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आपको 3 फॉलोअप्स करने हैं। और वो फॉलोअप्स करने का तरीका ये है कि जैसे आपने पहला मैसेज किया और 2 घंटे के अंदर अगर आपको रिप्लाई नहीं आया, तो आप 2 घंटे के बाद एक फिर मैसेज कर दें। और 2 घंटे के बाद फिर रिप्लाई नहीं मिला आपको, तो तीसरी बार आप कॉल कर दें कि मैंने आपको ये मैसेज किया था, या मेरा ये प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो सका, तो आप मुझे बता दें मैंने क्या करना है या मुझे किससे कनेक्ट करवाना है आपने। तो जो थर्ड कॉल होगी उस पर तो डेफिनेटली आपकी बात जो है वो सुननी जाएगी, आपको जो रिलेवेंट आंसर है वो मिल जाएगा। और अगर तभी नहीं मिलता थर्ड कॉल के बाद, या आपकी कॉल नहीं अटेंड होती, तो फिर आप प्रिंसिपल दौलत एजुकेशन वाला साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर कंप्लेन कर सकते हैं कि मरियम से हमने 3 फॉलोअप्स किए और मरियम ने रिप्लाई नहीं किया। तो खैर वो डेफिनेटली वो फिर मुझसे खुद ही रिप्लाई करवाएंगे आपको। तो इसलिए अगर आप ये 3 फॉलोअप्स करने के बाद दौलत साहब के पास जाते हैं, तो फिर वो डेफिनेटली आपके लिए ये सारी चीजें आसान मैम कर ये देंगे। पेज अगर आप हमें प्रोवाइड करें तो अगर इजी हो तो हम खुद इसको सेट कर लें। वैसे मैंने तस्वीर भी शेयर कर दी है। ये जो मैम आपका फेसबुक पे लगा हुआ है ना प्रोफाइल पिक्चर, वो स्मार्ट सी राउंड में, वो पीछे एक हम्म पेज है ना जो सेट किया हुआ है डिफरेंट कलर्स में। यकीन करें मैं हम्म इतने दिन इतनी कंफ्यूज हुई हूँ, और मैंने फिर एक दिन मैम गुलसाना को तंग कर दिया कि मैम मैं इसलिए इतनी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं भी आप लोगों के ओहदे के मुताबिक कलर डिसाइड किए हुए हूँ। तो मैं इतने दिन वेट करती रही ना, मैंने ना मांगा ना ही मैंने मैंने कैनवा पे 3 दफा ट्राई की और अधूरे छोड़ दिए, खुद से बनाने लग गई ना उसको। फिर मैं कंफ्यूज हुई मुझे कौन सा कलर लेना है। मैम ने कहा कोई पाबंदी नहीं है इस चीज पे। सही।
अच्छा, ऐसा है कि वो डिफरेंट स्ट्रीम्स में डिफरेंट चीजें हैं, और जिस स्ट्रीम की आप बात करें वहाँ ऐसी कोई अभी तक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, बिकॉज इट्स टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेशन। वो एक टेप्टा और रिहान एआई टीचर्स की कोलैबोरेशन है, वहाँ पे हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज डिफरेंट है। जी लेकिन जब मैम। आप डायरेक्टली रिहान के साथ कनेक्टेड है तो तब रूल्स एंड रेगुलेशन फिर आपको डिफरेंटली फॉलो जी करने। मैम। तो यहाँ पे जो अभी आपने वो हमारी पिक्चर के जो लेआउट की बात की है, वो इसलिए आपसे जो है वो रिक्वायर की गई ताकि सबका एक जैसा ही डिजाइन हो और सब एक जैसा ही अप्लाई करें। बट मैंने जैसे कि अभी रिक्वेस्ट की ना, आफ्टर अ वीक आप लोग इंशाल्लाह एक हफ्ते में ही आप तो प्रो हो जाएंगे सारे, और फिर मैं आपसे कहूंगी कि भाई मेरा ये काम कर दो, मुझे भी सिखा दो। ठीक तो फिर आप लोग मुझे जो ये टेम्पलेट्स बना के दोगे और ये सारी चीजें करके ठीक है दोगे, मैम। ठीक है? ठीक। तो ये इंशाल्लाह आफ्टर अ वीक आप सब ये चीजें कर पाओ। So just have a patience for a week and then you can go for it. Okay. ओके मैम, ठीक है। Okay, ओके Baris. मैम, ठीक है, Thank you so very कर much. लिया मैंने। Okay. I hope every question is being answered. अगर कोई unattended है तो प्लीज वो बता दे, वरना हमारी क्लास का टाइम खत्म हो चुका है आज का। So let's end up the class and thank you so very much for being so पेशेंट फॉर मी। आपने आज बैठ के मुझे बहुत देर तक सुना, लेकिन इंशाल्लाह कल से मैं कोशिश करूंगी और कम बोलूं। अहमद भाई तो बस हिला हिला के थक गए तब से। Okay, ji. Thank you so very much for joining us today. We'll see you tomorrow at the same time, 9 p.m. sharp. Till then, take good care of yourself and keep doing amazing things. Good night, sleep tight.